If you want, I can introduce myself. Absolutely, that will be brilliant. Yeah. So, team, can you check if we are live on YouTube already? All right. So, hello everyone and welcome to this special session. Uh, आज हमारे साथ हैं तुषार कंसल जी, जो कि इन्वेस्टर हैं और आज बहुत शॉर्ट नोटिस पे अभी रिसेंटली वी हैड अ कॉन्फ्रेंस जो एक नेशनल लेवल की क्लाउड किचन पे कॉन्फ्रेंस थी. सो आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू शेयर स्टेज विद तुषार जी. तो मैंने कहा कि व्हाट इफ वी कैन ब्रिंग हिम टू आवर चैनल, टू आवर ऑडियंस, टू आवर क्लाउड किचन कम्युनिटी एज वेल. सो आज इनके साथ हम ये सेशन कर रहे हैं. गाइज, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी हम लेंगे आखिरी में, लेकिन उससे पहले तुषार जी हैज समथिंग टू शेयर विद यू वेरी वेरी विच इज वेरी precious for all of you, and he will be sharing a lot of stats and stuff related to cloud kitchen and investor point of view आज शेयर करने की कोशिश करेंगे. तो गाइज, इससे पहले कि हम लोग ये सेशन स्टार्ट करें, मीनवाइल आप लोग बता सकते हो आप लोग कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो, तो अपनी सिटी का नाम जरूर चैट में लिख दीजिएगा. एंड ओवर टू यू कुशाल जी. मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया. प्लीज, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड योर बैकग्राउंड, yeah, for Sure. this audience. Sure. Thank you. Thank you, Dr. Abhinav. So, my presentation has little bit details about me. So, with your permission, I would like to share my screen. Absolutely. Yeah. Thank you. So, thank you everyone who have joined. I hope my screen is visible now. Dr. Abhinav, I hope the screen is Yes, visible. absolutely. It's Okay. visible. Okay. Yeah. Sure. So my company is Consultancy Ventures, which is an advisory firm into debt, equity, and mergers and acquisitions. I also manage an angel fund by the name Saffron First, which is an network of around 38 HNIs. Some of them are dollar HNIs and others are rupee HNIs. This is about me. In short, I have a 20-year-old experience post my MBA in finance from Delhi University. I've done my executive education from Harvard Business School, and in the past 20 years, in the corporate side, have worked for private equity practice at Deloitte Touche and Times of India's Brand Capital, and also managed debt at MTS India, the Russian company Systema's India unit, raised almost $2.5 billion of debt for the company. I was CFO with a company called Distribution Logistics, which is owned by the American fund Guggenheim Partners. But in my investment and startup journey, it is as young as 6 years old. And I have invested in 4 companies. And along with my angel investors, we have invested in more than 9 deals. These deals are tech and non-tech. But to be very fair, the fact is that a lot of them are technology-based deals, and we do have strong interest in food business. We believe that India is the world's third largest economy by purchasing power parity, and it's a consumption-led economy rather than an investment and exports-led economy. So consumption is very strong, and that's why we see all MNCs very strongly focused on the Indian consumption story. Food forms the largest basket of consumption for an Indian family. And we really believe in this sector, and we believe there is a lot of value creation which lies in this sector consistently for all times to come. So this is about me. This is a very brief snapshot of the people who are aligned with my angel network. Anurag Batra ji, promoter of Business World Exchange for Media. Rohit Bhatyani is the guy who helped Reliance set up Reliance Retail in India. He's now with Bennett Coleman. Yogesh Gandhi has had set up Reliance Sports in India, and in the last 7 years, he's been heading the business of ASICS, the Japanese company in Singapore. He took it to a revenue of almost $300 million. Rajesh Jindal is finance director with Amazon India and right now CFO with the Amazon company Cloudtail. Mr. Anil Prashar is the right-hand man of Indigo Airlines owners, the Bhatias, and he was MD and CEO of the holding company of Indigo Airlines Interglobe. Arun Chabra is a partner at CPMG. Manish Goyal is a CFO at PayU, the payment gateway, which is owned by Naspers.
as you all would be knowing, Naspers is the fund which sold Alibaba's stake worth $25 billion, and they are very strong and big investors. Mr. Jitendra Jain, ex-president finance Welspun and ex-group CFO GMR. Mr. Sonal Kohli managed $50 million Elara India Gateway Fund. He owns the fund and delivered the best returns in India continuously for 3 years. Mr. Manish Sabharwal is the pioneer of Brand Capital, which is earlier called Private Treaties. So Brand Capital was pioneered by Times of India, and Manish ji was a firm part of it. Viraj Chauhan is Chief Communications Officer with PepsiCo. Amit Kumar Rajput founded Chromosome Ventures with Mr. Chauhan at Jabong, the owner of Jabong. Ashu Agarwal is a serial entrepreneur and very famous in the startup circuit here in north part of India. Now, these are amazing. Sorry to interrupt, Tusharji. But before we go ahead, I just want to address the audience as well. Sure. So guys, जो लोग join कर रहे हैं, how many of you are excited to learn a lot from Mr. Tushar? Mr. Tushar has just given his introduction, and there is so much more value that is going to come in a way. Tushar ji, the language medium will be Hindi and English combined. So okay, sure. I'm a UP boy, so you know I love Hindi and I think in Hindi also. So we will keep the conversation on a lighter note that ways. YouTube पे भी a lot of people are joining. So guys, कहाँ से join कर रहे हो? I can see Mumbai, Ahmedabad, Hyderabad, Jaipur. Lot of places people are joining. So thank you so much for joining on a very short notice. आज तुषार कंसल जी हमारे साथ हैं और आज हम इन्वेस्टर का माइंडसेट भी समझने की कोशिश करेंगे और जो भी इन्वेस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो आपके, अगर आप कम्युनिटी मेंबर हो तो Q&A में डाल सकते हो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैट में डाल देना, एक एक करके हम लास्ट में लेंगे. सो ओवर टू यू कुशाल जी, या प्लीज. थैंक यू. Dr. Abhinav, you please keep on interrupting me because मेरा एक flow चलता है तो you know I just flow like गंगा माता की तरह चलता रहता है. तो आप मुझे रोक लेना जहाँ पे भी आपको लगे. Please feel free. इसमें जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है इसमें डेटा थोड़ा सा काफी ज्यादा है, बट मैं इसको बहुत सिंपल रखूंगा. हाँ जी. बहुत सिंपल रखूंगा. जैसे what is the current food market? Basically food market जो अभी है वो ब्रिक एंड मोर्टर रेस्टोरेंट्स की है और क्लाउड किचन्स की है. गोस्ट किचन्स भी कहते हैं जो विच आर एट चीपर प्लेसेस, कम रेंटल वाली जगहों पे जो फूड किचन्स खुली हुई हैं, विच आर दे आर आल्सो कॉल्ड गोस्ट किचन्स बिकॉज वो पब्लिक को दिखती नहीं है और वो कम रेंटल वाली जगहों पे है. टेक्नोलॉजी बहुत यूज हो रही है. बिलिंग, किचन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, वेयर हाउस, CRM, ऑनलाइन ऑर्डरिंग, मोबाइल ऑर्डरिंग, लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड फीडबैक मैनेजमेंट. जो मेन स्ट्रीम रेस्टोरेंट्स हैं जिनको कोविड की वजह से बहुत नुकसान हुआ, लोग अब तो खैर बाहर दिखते हैं. यहाँ दिल्ली में तो बहुत भीड़ है रेस्टोरेंट्स में, बट इट इज स्टिल नॉट बिजनेस एज यूजुअल. तो दे हैव बीन कंसिडरिंग एंड मेनी हैव ओपन क्लाउड किचन्स कि हाई स्ट्रीट रेस्टोरेंट खोलेंगे, उसका किराया कैसे मैनेज होगा, तो उससे अच्छा डिलीवरी बेसिस पर आ जाओ और क्लाउड किचन मॉडल चलाओ. इसमें 3 मॉडल्स रहते हैं क्लाउड किचन्स में. इंडिपेंडेंट किचन मॉडल मतलब एक सिंगल ब्रांड जो डिजिटली चल रही है और उबर ईट टाइप के एग्रीगेटर यूज करके डिलीवरी कर रही है. 1 या 2 फूड की ब्रांड्स हैं, इटालियन हो गया, स्पेनिश हो गया या मुगलई हो गया, उसको इंडिपेंडेंट किचन मॉडल बोलते हैं. दूसरा है डिलीवरी ब्रांड मॉडल जिसमें जो डेटा हमारे पास आता है कस्टमर ने कितना टिकट साइज का फूड लिया, कितने रेगुलरली लिया, कौन सा कुजीन खाना चाहता है. इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रिवन मॉडल. लेकिन जो ब्रांड है वो जैसे जैसे डिमांड पिक होती है उस पर्टिकुलर की, तो उसके हिसाब से बिल्ड होती जाती है. इसके अंदर हम डेटा एनालिसिस भी अगर यूज करें तो बहुत अच्छा इसमें आउटपुट निकल सकता है. और हमारी जो चॉइसेस हैं, कौन सा कुजीन को प्रमोट करना है, किस प्राइस पॉइंट पे प्रमोट करना है, उसको बहुत असिस्टेंस मिल सकती है अगर हम डेटा लेड चॉइसेस करें. तीसरा है शेयर्ड क्लाउड किचन. ये इसलिए पॉपुलर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट सिटीज के अंदर महंगी होती है और महंगी कॉस्ट को अगर शेयर करेंगे, लार्ज स्पेस पे खोलेंगे 10-20,000 स्क्वायर फीट, तो सभी को सस्ता पड़ेगा.
20 से 30 ब्रांड्स इसमें चला सकते हैं एक साथ। कुक्स जो है उनको शेयर कर सकते हैं। जैसे कई कंपनीज ऑफर कर रही हैं शेयर्ड क्लाउड किचन्स। वो ये कहती हैं कि बस आप हमें अपना ब्रांड चलाओ और अपनी रेसिपी हमें दे दो, हमारे कुक को ट्रेन करके हम इसको चला लेंगे। तो इस टाइप का है ये करंट फूड मार्केट, डॉक्टर अभिनव। राइट, ब्यूटीफुल। प्लीज कैरी ऑन जी। ओके, थैंक यू। एक सेकंड, नेक्स्ट। हाँ, अच्छा। मीनवाइल जो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं गाइस, डेफिनेटली क्वेश्चन जरूर पूछिए। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आखिरी में जरूर लेंगे। तुषार जी हमारे साथ हैं ऑलमोस्ट अभी हाफ एन आवर 1 आवर के लिए, सो मैक्सिमम सीखना चाहेंगे तुषार जी से। जी प्लीज। माय प्लेजर डॉक्टर अभिनव। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी ऑरा है आपकी। तो आपके साथ जब बात कोई टॉपिक पे होती है तो अंदर से मन कर रहा है जितना समझा सकता हूँ समझा दूं। थैंक यू तो सो मच, मीन्स अ लॉट। थैंक यू। व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ क्लाउड किचन्स? क्लाउड किचन हो गया कि हम एक रेस्टोरेंट के अलग अलग पार्ट्स को हम अलग अलग चीजों में ब्रेक करके उसको वर्क करें। जैसे कस्टमर एक्विजिशन है, वो एक डेटा लेड अप्रोच है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग का यूज हो सकता है। उसमें फेसबुक से अगर कोई पेड पोस्ट कर रहा है तो वो ब्रांडिंग के लिए ज्यादा यूज होता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपके लोकल एरिया में आप टारगेटेड फेसबुक या इंस्टा या फिर ट्विटर, तो खैर इतना नहीं, बट अगर आप लोकल हाइपर लोकल एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। फूड प्रिपरेशन, लॉजिस्टिक्स और रेसिपी मेन्यू, ये चार तरीके से हम क्लाउड किचन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ज्यादातर ये देखा गया है कि लॉजिस्टिक्स में खुद का नेटवर्क आप तभी क्रिएट करते हो जब आप एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड एरिया में रहते हो जहाँ पे वेल डिफाइंड फूड चॉइस है। तो इसमें इट मेक्स सेंस कि आप उसमें अपने ड्राइवर्स रखो, अपनी फ्लीट रखो। नहीं तो आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी को यूज करो। मैं ऑल्दो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मनप्रीत सीरा, आई मीन he's in Dubai, but he recently opened some cloud kitchen business. तो वो कहता है मुझे कि यार 20 to 25% या 22% मैं अगर स्विगी को दे रहा हूँ या, तो मुझे दर्द होता है बहुत, मुझे दुख होता है कि मैं 600 रुपए का चिकन बेच रहा हूँ और उसमें से 150 रुपए मेरे को आगे देने पड़ रहे हैं। मुझे ये लगता है कि मैं एक छोटी सी किचन अगर सपोज चला रहा हूँ और आसपास बहुत अच्छी पॉपुलेशन है तो मैं वो 25% बचा लूँ। तो उसमें उसमें क्या है कि थोड़ा सा ग्रे एरिया ये है कि जब आप फूड भेज रहे हो स्विगी या जोमेटो से तो उसमें अपने फ्लायर्स डाल दो। आप उस जो कस्टमर एक्विजिशन को है स्लोली आप कोशिश करो कि आपकी वेबसाइट या आपकी अपनी ऐप के थ्रू होए। अगर इसको आप हाइपर लोकल तरीके से करोगे इसमें बहुत अच्छे मार्जिन हैं, स्पेशली अगर आपका ब्रांड और आपका जो रेसिपी है वो चल निकला। तो उसमें आपको ट्विकिंग करने की भी जरूरत हो सकती है टाइम टू टाइम कि आप अपने टेस्ट बदलो, आप देखो कि कस्टमर को क्या चीज नहीं पसंद आ रही। उसी तरह से इसमें जो चार पीसेस हैं क्लाउड किचन के, लॉजिस्टिक्स पीस जैसे उबर ईट्स ने सॉल्व कर दिया कि आप उबर ईट्स से, सॉरी, कस्टमर एक्विजिशन उबर ईट्स ने सॉल्व कर दिया, वन क्लिक ने लॉजिस्टिक्स सॉल्व कर दिया। तो जो हाई स्ट्रीट रेस्टोरेंट्स हैं उनको अब ये देखना पड़ रहा है कि कोविड से पहले ज्यादा किराए देके भी, हाँ, लोग चलाते थे हाई स्ट्रीट रेस्टोरेंट, एक एम्बियंस क्रिएट करते थे। लेकिन कोविड के बाद जिन लोगों की रीनेगोशिएशन अपने लैंडलॉर्ड्स के साथ अच्छी नहीं चली तो उनको नुकसान लगा। तो अगर आपका लैंडलॉर्ड इस बात को समझता है कि फूड बिजनेस में 5 से 6 महीने फ्रेश फूड सभी मेन्यू के सभी आइटम्स का रखना पड़ता है, चाहे बिजनेस धीरे धीरे पिक हो। अगर वो आपको 6 महीने का समझता है धंधे को तो आपको रिलैक्सेशन टाइप से जो रिलीज रेंटल आप दे रहे हैं उसके अंदर आप इस चीज को फैक्टर इन करके चलिए कि 5-6 महीने लगते हैं। और क्लाउड किचन के अंदर अगर आप स्विगी जोमेटो यूज कर रहे हैं तो उसमें भी कस्टमर को 5-6 महीने लगते हैं आपकी लिस्टिंग को, स्विगी के अंदर लिस्टिंग जो आपकी है उसको ढंग से पहचानने में, उसका ब्रांड रिकॉल जनरेट करने में, लॉयल्टी जनरेट करने में 5-6 महीने का टाइम लगता है। तो इस चीज का कैश बर्न जो आपका होगा, चाहे वो हाई स्ट्रीट रेस्टोरेंट में है या फिर स्विगी जोमेटो पर है, तो उस चीज को आप फैक्टर इन करके चलिए। राइट।
Can I move ahead, Doctor? Absolutely, absolutely. By the way, guys, if you are loving this conversation which is happening, और काफी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आज तुषार जी, so please like also कर देना ताकि we get an understanding of future में ऐसे और भी सेशंस किए जा सके. जी प्लीज तुषार जी. थैंक यू. सो ये प्रेजेंटेशन थोड़ी सी टेक्स्ट हैवी दिख रही है, लेकिन आप इसकी जो लिखी हुई बातें उसमें मत जाइए. मैं आपको सिंपली सबको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि एक क्लाउड किचन बिजनेस खोलने में कौन से फैक्टर्स हैं. सिंपल तरीके से देखते हैं एक बाय एक. कैश बर्न 5 से 6 महीने का हाथ में होना चाहिए. जो जो मेन्यू आप रखें, आप लिमिटेड मेन्यू रखें, लेकिन उसके फ्रेश आइटम्स रखें. आपको 5-6 महीने रखने पड़ेंगे. और जब आप डेटा एनालाइज कर रहे हो मेरी क्या चीज बिकती है, तो फिर आप फ्रेश आइटम्स को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर पाओगे. लोकेशन, रियल एस्टेट में बोलते हैं लोकेशन लोकेशन लोकेशन. अभी साउथ ईस्ट एशिया में और कुछ एक इंडियन कंपनी भी स्टार्टअप मेरे पास आई थी. वो ट्रक्स यूज कर रहे हैं क्लाउड किचन्स के लिए. आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लाइसेंस लो और आप ट्रक को खड़ा कर दो. और जो बेस्ट लोकेशन है वहां पे आप डेटा लेड भी आप अप्रोच रख सकते हो. पहले यहाँ पे ट्राई किया 3 महीने, एक ट्रक वहां पे ट्राई किया, उसकी बेस्ट पोजीशनिंग आपको विद टाइम पता चल जाएगी. उसी तरह से. हाँ जी. अभी इसी पे एक क्वेश्चन आया था यूट्यूब पे, टास्क को पूछ रहे हैं कि क्या हम वैन में सेटअप कर सकते हैं, तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा ऑलरेडी. जी तुषार जी प्लीज कंटिन्यू. वैन में कर सकते हैं. दिल्ली जैसी सिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ज्यादा रोल रहता है उसमें. टीयर 2 में इतना रोल शायद नहीं रहता होगा. लेकिन अगर आप प्रॉपर अप्रूवल्स के साथ करें तो थोड़ा बेटर ही रहता है. मन की शांति से धंधा अच्छा होता है. तो जैसे हमारे रियल एस्टेट में कहते हैं कि जब आप डीडीए से फाइल मैप अप्रूव कराते हो उस टाइम पूरी फाइट कर लो, लेकिन जब मैप अप्रूव हो गया तो वैसे ही बनाना और शांति की जिंदगी. तो गाइज मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे होगे अबाउट इन्वेस्टमेंट आल्सो, लेकिन एक ओवरव्यू लेते हुए चल रहे हैं अबाउट द सिनेरियो, मार्केट सिनेरियो, और एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को हम यहाँ पे समझ रहे हैं. इसलिए तुषार जी इन चीजों को भी हाईलाइट कर रहे हैं, तो प्लीज मेक नोट्स, ध्यान से सुनना. ये सारी चीजें बहुत ज्यादा गोल्डन इन्फॉर्मेशन है. बाय द वे कितने लोग को अभी तक इन्फॉर्मेशन वाओ लग रही है, जस्ट कमेंट करके बताना वाओ. ठीक है. जी तुषार जी प्लीज कंटिन्यू. राइट मेन्यू रखें, ट्रेन्ड शेफ और कुक को रखें, इको फ्रेंडली पैकेजिंग रखें. तो उससे आपको आजकल लोगों को बहुत जो कोविड के बाद लोगों ने देखा कि वेदर इतना अच्छा हो गया, लोगों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि क्या पॉल्यूशन है हमारी सिटीज में. और इंडिया में वर्ल्ड की टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज वाली कंट्री है. तो आप इको फ्रेंडली पैकेजिंग मिले, आपको सॉफ्ट कॉर्नर ब्रांड रिकॉल उस चीज का मिलेगा. उसी तरह से आप एक ट्रस्टेड फूड डिलीवरी एप्लीकेशन के साथ जाएं, क्योंकि एक स्टडी रेड सीयर कंसल्टिंग की है कि 17th मिनट तक फूड आपकी किचन से निकल जाना चाहिए और 29th मिनट तक डिलीवर हो जाना चाहिए. तो वो स्टडी जो है वो ये कहती है कि आपको एक अच्छा फूड डिलीवरी एप्लीकेशन रखना पड़ेगा. अप्रूवल और एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा. डेटा ड्रिवन अप्रोच आप रखें, वो आपके लिए बहुत, बिकॉज एवरीथिंग इज अ कॉस्ट. आजकल मार्केटिंग भी कॉस्ट है, वेस्टेज भी कॉस्ट है, हर चीज एक कॉस्ट. जी आई थिंक कुछ नेटवर्क चैलेंज आ रहे हैं तुषार जी के साइड से. एनीवेज जो अभी इन्होंने रेड सीयर की एक स्टडी के बारे में बात की 29th मिनट की, उनकी ही एक और स्टडी है जो मैंने पास में शेयर भी की है कि डोमिनोज 27th मिनट तक मेक श्योर करता है कि फूड आपके टेबल पे हो, और 37th मिनट तक पिज्जा हट मेक श्योर करता था. तो ये जो 10 मिनट का मार्जिन था, डिफरेंस था, इसी में डोमिनोज जीत गए गेम इस मार्केट में. बिल्कुल. तुषार जी आप बैक हैं प्लीज. हाँ, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेजी इकोनॉमी. आजकल क्या है कि प्राइवेट जॉब्स मुश्किल हैं, टफ हैं. बेसिकली अच्छी सैलरीज मिलती हैं तो कम एम्प्लॉय से काम लिया जाता है. और उसमें हस्बैंड भी वर्किंग हो, वाइफ भी वर्किंग हो, डबल इनकम तो है, लेकिन टाइम नहीं है. वो मेट्रो पकड़ के जाना पड़ रहा है, कार चला के जाना पड़ रहा है, तो उसको एक लेजी इकोनॉमी क्रिएट हो गई है. उनको ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर में नहीं जाना, उनको हर चीज चाहिए. यार अमेजोन पे ऑर्डर कर लो, स्विगी पे ऑर्डर कर लो, जोमेटो पे ऑर्डर कर लो, और हमारा टाइम और एफर्ट बचा दो. तो वो एक ऐसा क्लास क्रिएट हो गया है ये सिटीज के अंदर खासकर.
तो इस क्लास को आप टारगेट अच्छी तरह कर सकते हैं। अच्छा, क्लाउड किचन में सक्सेस मंत्रा क्या हो सकते हैं? रेस्टोरेंट महंगा है क्लाउड किचन से सेटअप करने में, क्योंकि उसका जो केपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो आपको अच्छे सोफा रखने पड़ेंगे, अच्छा एम्बियंस देना पड़ेगा, लाइट पे खर्च करना पड़ेगा। लेकिन क्लाउड किचन के अंदर ओपेक्स ज्यादा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, यानी उसको चलाने में खर्चा ज्यादा आता है, क्योंकि डिलीवरी का खर्चा है, पैकेजिंग का खर्चा है, फास्ट टर्न अराउंड टाइम्स, और रेसिपी आपकी हर बार, भगवान करे बहुत हाइजीन प्रोडक्ट जाए, हर बार आप ऐसे ही प्लानिंग करके चलो। उसी तरह से जो कॉस्ट होती है जो टिपिकली देखी है क्लाउड किचन में, 10% अराउंड पैकेजिंग पे जाता है। एग्रीगेटर फी ऑल्दो 15 to 30% है, बट ये इसके अंदर मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया तीनों का एवरेज है, तीनों का रेंज है। एक्चुअल इंडिया में अराउंड 25-30% है, विच इज अ बिट हाई। और डिजिटल स्पेस में कंपटीशन तो है ही ज्यादा। इसी तरह से जो क्लाउड किचन है वो 4 times ज्यादा बिजनेस कर सकता है एज कम्पेयर टू हाई स्ट्रीट रेस्टोरेंट। लेकिन अगर 2.5 times तक भी कर रहा है तो आप उसको अपना जो डिलीवरी रेडियस है वो बढ़ा के आप ज्यादा इसमें अर्निंग कर सकते हैं। ग्रेट। हाउ डू यू सी फ्यूचर ऑफ क्लाउड किचन इंडस्ट्री? मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी की जो मार्च है, .com बूम आया, उसके बाद 2008 आया, फिर अब कोविड आ गया, लेकिन टेक्नोलॉजी आगे ही बढ़ती जा रही है। तो आप टेक्नोलॉजी को जितना यूज करते हो, अब मेरे एक क्लाइंट है, वो उनके बीपीओ इंडस्ट्री के क्लाइंट है, तो मैंने उनसे बोला आपका बीपीओ का जो पूरा सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर से मैनेज होता है, तो आप कैसे इसके ऊपर कितना खर्चा करते हो? तो ही गेव मी अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। उसने कहा हाई एंड स्ट्रीट ब्रांड से आप अगर सॉफ्टवेयर खरीद के मैनेज करोगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा। एक अच्छी स्टार्टअप से उन्होंने सॉफ्टवेयर लिया हुआ है जो आगे बढ़ बढ़ के मैनेज करती है, सस्ते में डिलीवरी करती है, और 25% ऑफ द कॉस्ट पे काम चल रहा है। क्या बात। तो मतलब इस टाइप की अगर आपके अपने धंधे के ऊपर पकड़ है तो आप इस टाइप के डिसीजंस अच्छे ले सकते हो। इसी तरह से फ्यूचर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का है, और हर चीज में टाइम सेविंग का है, हाइजीन का है, बेटर फूड, बेटर पैकेजिंग। जो हाई स्ट्रीट रेस्टोरेंट्स हैं उनका एम्बियंस दो टाइप से मैंने देखा है। अगर आप थोड़ा यंग क्राउड को केटर करते हो तो लाउड म्यूजिक, जैज, थोड़ा शोर, थोड़ा रॉकिंग स्टाइल में, और अगर आप थोड़ा सा मिडिल एज लोगों को करते हो तो इट हैज टू बी लिटिल बिट क्वाइटर विद मोर। आई एम श्योर यही चीजें आपके लोगों में, आपके पैकेजिंग में, क्योंकि यहाँ क्लाउड किचन की बात हो रही है, तो यही चीजें हमारी इन अदर ब्रांड में बेसिकली झलकनी चाहिए कि लाउड ब्रांड है, अगर यंगस्टर को टारगेट करता है, और अगर एवरेज। एम आई राइट तुषार जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल डॉक्टर। प्लीज। सो इसमें एक मेरे को एग्जांपल यूनिट इकोनॉमिक्स का देना है, कि पहले क्या था कि मार्केट शेयर ले लो। अब मार्केट शेयर तो एक टाइम पे वोडा ने लिया, वोडाफोन ने, आइडिया ने लिया, एयरटेल ने लिया, लेकिन वो सब लॉस पे ले रहे थे। अब चाहे वो वोडा और आइडिया मिला के इंडिया की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी भी हो गई, लेकिन बिजनेस मॉडल तो लॉस वाला ही था। तो 40 करोड़ से 30 करोड़ पे सब्सक्राइबर्स आ गए। तो बेसिकली आप लॉस करके मार्केट शेयर लेते हो। वो मॉडल वी वर्क, जब से वी वर्क का आईपीओ नीचे गया है, तब से उसके बाद से इन्वेस्टर जो है उसको लाइक नहीं करता। वो कहता है मेरे को कैश गजलिंग, कैश बर्न वाले, हेवी हाइपर लोकल, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट वाले बिजनेस मॉडल्स से वो थोड़ा दूर भागता है। वो ये कहता है कि मोनेटाइजेशन करके दिखाओ, मुझे ये दिखाओ कि मैं कैसे इसमें से हर यूनिट प्रॉफिटेबली बिकती है। और इसको यूनिट इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और इस चीज का काफी आजकल जो इन्वेस्टर है इज वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस फैक्ट। ब्यूटीफुल। तो एट द सेम टाइम जो स्टार्टअप कोई शुरू करेगी तो शुरू में नेचुरली इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहती है, इस वजह से लॉस आता है। तो ब्रांडिंग, कस्टमर एक्विजिशन, लॉयल्टी पे तो खर्चा करना ही पड़ता है, बट एट द सेम टाइम आप जल्दी ब्रेक इवन करो। इस टाइप के मॉडल्स ब्रेक इवन के साथ आप रखोगे तो दे आर बेटर फॉर द इन्वेस्टर। अब एज एन इन्वेस्टर व्हाट आर द टर्न डाउन्स एंड टर्न अप्स फॉर यू? जो
मेरे पास स्टार्टअप आके ही कहती है, तुषार जी कि आप तो ये करते हो इन्वेस्ट, आपने उसमें किया हुआ है, तो मेरे को इस वजह से मैं आपके पास आया, मुझे लगता है ये रिसर्च करके आया। हम्म। और मतलब ही मीन्स बिजनेस। हम्म। मतलब कोई मेरे पास आए, नेचुरली कोई स्टार्टअप आती है, आई ऑलवेज गिव टाइम, हम्म। बिकॉज इट्स माय जॉब। हम्म। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट थीसिस इन्वेस्टर की पता होनी चाहिए, सबकी वेबसाइट्स पे लिखी हुई है क्या है, कौन से सेक्टर में करते हैं, स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, चेक साइज कितना देते हैं पैसे, कौन सी ज्योग्राफी में लाइक करते हैं, और सिंगल फाउंडर के लिए प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कई इन्वेस्टर्स को सिंगल फाउंडर से प्रॉब्लम है। हम्म। अ, दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि वो इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो पीछे से पैसा रेज किया हुआ है, वो कौन से टाइप का पैसा है। अब जैसे फूड के अंदर इंडिया का लार्जेस्ट फंड है राबो इक्विटी। हम्म। राबो के पास यूरोपियन मनी है, मोस्टली पेंशन फंड्स हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। वो पेशेंस मनी है, मतलब हम्म। उनको 5 साल 7 साल 8 साल पैसा उन्होंने दे रखा है उनको। तो 5 साल तो आसानी से कुछ नहीं पूछेंगे। मेरा हम्म। मतलब कुछ नहीं पूछेंगे मतलब ये नहीं है, मतलब आपसे नेचुरली आपके टच में रहेंगे, आपको हेल्प करेंगे, बट पेशेंस है कि बिजनेस को ग्रो करने में टाइम लगता है। उसी तरह से अगर एच एन आईज का पैसा है, अगर वो कंजर्वेटिव एच एन आईज हैं, जैसे बिजनेस फैमिलीज इंडिया की हो गई, तो वो 3 साल में उनको लगता है कि हमने काफी टाइम वेट कर लिया, अब हमें अपना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अपना आईआरआर मिल जाना चाहिए। हम्म। तो उसी में बैरियर्स टू एंट्री और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फूड के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब इस टाइप की कोई ज्यादा होती नहीं है, बट लेकिन डोमिनोज हो गया या इस टाइप के जो ब्रांड्स हैं, इन्होंने अपना स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, अपनी ब्रांडिंग और कई केसेस में अपनी रेसिपी भी पेटेंट करा रखी है। ब्यूटीफुल। तो वो यूज हो सकती है। मेरे को थोड़ा सा पर्सनली प्रॉब्लम होती है, जो एक स्टार्टअप वाले से बात हो रही थी, तो वो उसने 10 फाइनेंशियल जार्गन यूज कर दिए 10 सेकंड के अंदर। तो वो मुझे लगा कि वो बिजनेस समझाने के लिए फाइनेंशियल जार्गन यूज नहीं कर रहा, वो फाइनेंशियल जार्गन समझाने के लिए बिजनेस यूज कर रहा है। तो ये बहुत होता है, ये हाँ, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। सो तो ये मतलब ये कोई इन्वेस्टर भी कोई ऊपर से तो उतर के आया नहीं है, उसने भी सेम एजुकेशन सिस्टम से ही करके, मतलब आप सिंपल तरीके से भी अपनी धंधे को समझा सकते हो, बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करने से इन्वेस्टर का वैसे ही मेंटल बैंडविड्थ बहुत कम होता है, दिन में 20 से 40 डेक आते हैं। तो वो जितने इजीली समझता है तो उसको मेंटल रिलीफ मिलता है, वो बहुत शांति फील करता है। तो तो वो अच्छा है। बाकी कुछ एक टर्म शीट हॉपर्स बोलता हूँ मैं लोगों को ना, एक जगह से टर्म शीट निकलती है तो वो दूसरे को दिखाने लगते हैं कि हमारे पास तो टर्म शीट है। हाँ। इस स्ट्रेटेजी को मैं गलत नहीं मानता, फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरे कुछ क्लाइंट्स थे, मैंने उनके साथ किए, हम्म। लेकिन उसका बेनिफिट भी हुआ है क्लाइंट्स को। बट एट द हम्म। सेम टाइम इन्वेस्टर को ये नहीं लगना चाहिए कि यू आर आई थिंक म्यूट हो गया तुषार जी, सॉरी। एम आई ऑडिबल। एब्सोल्युटली ऑडिबल। बाय द वे तुषार जी, सॉरी टू इंटरप्ट। आप मीनवाइल ये जो बेसिक टर्म्स हैं, टर्म शीट, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। श्योर और श्योर श्योर जी प्लीज। श्योर। तो मैं ये कह रहा था कि इन्वेस्टर को ये नहीं लगना चाहिए कि आप जैसे सब्जी खरीदते हैं और नेगोशिएट करते हैं वैसे कर रहे हो। हम्म। आप उसको पोलाइटली बोल सकते हो, हमारा राउंड 7 करोड़ का है, एक 3.5 4 करोड़ की टर्म शीट है, तो हम 3 और देख रहे हैं, ये सॉफ्ट कमिटमेंट है या हार्ड कमिटमेंट है। इट्स वेरी नॉर्मल। हम्म। तो वो है इसमें। टर्म शीट क्या होती है कि इन्वेस्टर बहुत सारे, इनफैक्ट मैंने इसमें एक पूरी स्लाइड बना रखी है टर्म शीट एक्सप्लेन करने के लिए। हम्म। तो बेसिकली इन्वेस्टर किस तरीके से इन्वेस्ट करेगा, प्रेफरेंस शेयर लेगा, डिबेंचर लेगा या प्लेन इक्विटी लेगा, किस वैल्यूएशन पे लेगा, उसकी कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के साथ आएंगी, उसका एग्जिट जो होगा तो उसमें किस तरीके से वो जो स्टेप बाय स्टेप क्लॉजेस होते हैं, वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ स्लाइड जब आती है। डन। सो गाइस, बेसिकली टर्म शीट ओके। आसान शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भी आपका नेगोशिएशन हुआ है, उसकी क्या टर्म्स और कंडीशन है, उसका पूरा बेसिक डॉक्यूमेंट, इसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है और आपकी कंपनी का वैल्यूएशन क्या है।
और अगेन गाइज, आज जो लोग नए ज्वाइन किए उनको मैं जस्ट एक बार रिव्यू कर दे रहा हूँ। तुषार कंसल जी हमारे साथ है, और ये एक सीजन्ड इन्वेस्टर में कह सकता हूँ। मल्टीपल करोड़ ऑलरेडी खुद इन्वेस्ट कर चुके हैं, और अच्छा खासा इनका नेटवर्क है। ओवरऑल नेटवर्क का तो मैं एस्टिमेट नहीं लगा सकता, बट आई एम श्योर इट्स इन मल्टीपल करोड़ अगेन। So he's here and he's talking about investors mindset, cloud kitchen, market insight, और एक इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव आज आपको जानने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ क्लाउड किचन एंड वेयर थिंग्स आर मूविंग, किधर जा रही हैं चीजें। सो बहुत मजा आ रहा है। एंड इफ यू आर ऑल्सो एंजॉइंग दिस, तो लाइक कर देना अगर यूट्यूब पे हो, और अगर इस जूम पे देख रहे हैं जो क्लाउड किचन कम्युनिटी मेंबर्स हैं, तो प्लीज डू शेयर कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो चैट में जरूर बता दीजिएगा। जी, ओवर टू यू तुषार जी, प्लीज कंटिन्यू। या थैंक यू, थैंक यू। जब आप इन्वेस्टमेंट ढूंढना शुरू करते हैं तो किन चीजों का ख्याल रखें? मोटा माटी आपका इंटरनेट पे प्रेजेंस होना चाहिए। गूगल पे नाम टाइप करें डॉक्टर अभिनव सक्सेना, पहले 10 और पहले 20 जो मेरे को रिजल्ट आएंगे उससे आगे मतलब नहीं है। आजकल उससे ज्यादा आगे कोई जाता भी नहीं है, गूगल रिजल्ट बहुत एक्यूरेट हो गया है। वो आपके बारे में कुछ ऐसा बताना चाहिए जो सामने वाले को क्लियर हो जाए कि यार हाँ ये बंदा ये है, ये है, ये करता है। अगर आप टॉप 10-20 गूगल पे नहीं कर पाओ तो कम से कम अपनी वेबसाइट ही इतनी अच्छी आपकी थोड़ी एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। दूसरा, आपके हाथ में एक पिच डेक, बिजनेस प्लान होना चाहिए, एक फाइनेंशियल मॉडल जिसे कहते हैं बेसिकली 5 साल की प्रोजेक्शंस या 3 साल की प्रोजेक्शंस, कैसे आप पैसा बनाओगे कोई एक्सेल देख के समझ जाए। तो यूनिट इकोनॉमिक्स तो है ही। बाकी कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो अपने स्टार्टअप आइडिया से, वो आप अच्छी तरह सिंपल वर्ड्स में बताइए। आप एंजल लिस्ट जैसे नेटवर्क पे लिस्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन, अगर आप इन्वेस्टर को रीच आउट कर रहे हैं तो इन्वेस्टर ने जिस स्टार्टअप में पैसा डाला है उसके फाउंडर के थ्रू रीच आउट करिए, वो बेस्ट होता है, इन्वेस्टर को वैलिडेशन मिलता है। अगर आप डायरेक्टली जा रहे हो तो आप लिंक्डइन पे पर्सनलाइज्ड इनवाइट भेजिए जिसमें आप 4 लाइनें अपने बारे में बताइए कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ और मैं आपके थ्रू कनेक्ट करना चाहता हूँ। आप इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स के पास भी जा सकते हैं, जो काफी हैं। 2 टाइप के होते हैं ये। एक कॉलेज के एसोसिएटेड होते हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। दूसरे वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले होते हैं। एक होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो आपको कोवर्किंग स्पेस भी देंगे, 1 साल के लिए फ्री देंगे, साथ में वाईफाई, आपको सीए की सर्विस चाहिए हो, सीएस की चाहिए हो, लीगल की चाहिए हो तो उनके टाइप्स होते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, वर्चुअल, जो बेसिकली आपको मेंटरिंग देते हैं, आपको बिजनेस कनेक्ट्स देते हैं, मैनेजमेंट मेंटरिंग देते हैं और आपको मोटिवेशनल सपोर्ट देते हैं। दूसरा, आप को इन्वेस्टमेंट थीसिस पता होनी चाहिए इन्वेस्टर की। वो मैं बार बार सॉरी मतलब बोल रहा हूँ, बट मेरा पर्पस यही है कि इन्वेस्टर बहुत जल्दी पुट ऑफ हो जाता है, और जहां पे 3-4-5 इन्वेस्टर से हम नो सुन लेते हैं हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हो जाता है और हमें लगता है ये इन्वेस्टर पता नहीं कहाँ से उतर के आया है। तो वो एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है, फिर वो उससे हमारी वैल्यूएशन भी इफेक्ट हो सकती है, कल को हम गलत डिसीजन ले लें। तो ये है। अब एक स्टार्टअप टर्म शीट कैसे रीड करनी है, ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। मैं इसके ऊपर जितने क्वेश्चंस हो आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर। अभी वेंडीज एक रेस्टोरेंट था, मैं साइबर हब में आई यूज्ड टू गो देयर। इतना अच्छा इंडियन टेस्ट का उनके पास आइटम्स थे, इतनी अच्छी उनकी आउटलेट थी, बंद करने पड़े बिकॉज ऑफ कोविड। अब उन्होंने 250 क्लाउड किचन रेबल फूड्स के साथ, फासूस वालों के साथ लगा रहे हैं। साथ में 150 ब्रिक एंड मॉर्टर का भी प्लान है। तो दिस शोज की क्लाउड किचन मॉडल इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। और फूड एक ऐसी चीज है जो जब से ह्यूमैनिटी है तब से है, तो ये बिजनेस एवरग्रीन है। और इंडिया में तो ऑल्दो फैमिलीज थोड़ा इन हाउस कुकिंग ज्यादा प्रेफर करती हैं, बट एज कंपेयर टू साउथ ईस्ट एशिया, जापान एक्सेट्रा, बट फिर भी बाहर खाने का ट्रेंड पॉजिटिव ही है और अच्छी ग्रोथ पे है। तो एक टर्म शीट में क्या देखना चाहिए? एक होता है बाइंडिंग टर्म शीट या नॉन बाइंडिंग टर्म शीट। बाइंडिंग टर्म शीट मतलब ये है कि आज मैं साइन करके दे रहा हूं बाइंडिंग टर्म शीट, कल को ड्यू डिलिजेंस कराऊंगा, उसमें से कुछ एडवर्स या उल्टा निकल गया कंपनी का, उससे वैल्यूएशन शायद कम मैं ऑफर करूंगा, लेकिन तब भी मैं इन्वेस्ट जरूर करूंगा।
नॉन बाइंडिंग बाद में कुछ उल्टा सीधा निकला, आई एम फ्री टू लीव, मैं लास्ट डे जो साइन करनी होगी डील उस दिन भी निकल सकता हूँ। उस तरह से टर्म शीट के अंदर वैल्यूएशन, कौन सी वैल्यूएशन में मैं आ रहा हूँ, कितना अमाउंट डालूंगा, कितना परसेंटेज स्टेक लूंगा, उसमें अलग अलग टाइप के क्लॉजेज होते हैं। अब कई बार होता है कि वैल्यूएशन पे बात नहीं बन रही, तो इन्वेस्टर क्या करता है, वो कहता है मैं प्लेन वनीला इक्विटी नहीं लूंगा, मैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर या कन्वर्टेबल डिबेंचर ले लेता हूँ। मोस्टली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर लेता है। उसमें क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर फ्यूचर में कन्वर्ट होगा इक्विटी के अंदर एट अ सर्टेन फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला टर्म शीट में डाल देते हैं कि सपोज 1 साल बाद जितना भी एबिडा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का होगा, उसके सपोज 5 टाइम 15 टाइम पे हम उससे कंपनी की वैल्यूएशन आ जाएगी, उस वैल्यूएशन में मेरा प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका, सॉरी टू इंटरप्ट तुषार जी, यहाँ पे आप एक कंपनी का वैल्यूएशन कैसे होता है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा समझा सकते हैं एक लेमेन ऑडियंस के लिए, ताकि सबको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि एक कंपनी का वैल्यूएशन होता कैसे है, परसेंटेज और स्टेक के बेसिस पे पैसे कैसे डिसाइड होते हैं, ऑल ऑफ दैट जी प्लीज। तो वैल्यूएशन एक ऐसी चीज है जिसका ना बहुत लाइमलाइट में है, बिकॉज हम देखते हैं अमेजॉन $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप से $2 ट्रिलियन की हो गई 1.5 साल के अंदर। $1 ट्रिलियन की $2 ट्रिलियन की हो गई। तो मतलब विश्वास नहीं होता कई बार, तो नेचुरली फाउंडर को भी लगता है कि मेरे को कहीं नुकसान ना हो जाए, मैं अच्छी वैल्यूएशन पे ही डील करूं। वैल्यूएशन 4-5 तरीके से होती है। एबिटा यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जिसको हम एक तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं। जनरली उसके मल्टीपल पे होती है, तो उसका मल्टीपल वैसे स्टार्टअप्स के केस में रेवेन्यू मल्टीपल भी होती है, 4 टाइम्स रेवेन्यू, 2 टाइम्स रेवेन्यू, 3 टाइम्स रेवेन्यू। एबिटा यानी 10 टाइम्स एबिटा, 15 टाइम्स एबिटा। तो आपके जैसी कोई सिमिलर कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, आप उसकी रिसर्च रिपोर्ट, जो रिसर्च हाउसेस की रिसर्च रिपोर्ट उठा लो, उस पे आपको कंपनी की कितनी मार्केट कैप यानी कितनी वैल्यूएशन चल रही है वो दिख गई, और आप उसके प्रोजेक्शंस भी होती हैं अच्छी कंपनीज की 1 साल आगे की, आप उसकी 1 साल आगे की रेवेन्यू और एबिटा उठा लो, और उसकी मार्केट कैप आपको पता है कितने की वैल्यूएशन चल रही है, उससे आपका मल्टीपल निकल गया। 5 टाइम रेवेन्यू पे चल रहा है स्टॉक, 15 टाइम एबिटा पे चल रहा है स्टॉक। वो मल्टीपल को आप अपने 1 ईयर फॉरवर्ड फिगर्स पे लगा दो, आपका 1 साल बाद क्या रेवेन्यू होगा, 1 साल बाद क्या एबिटा होगा, आपका जो प्रोजेक्शन है उस पे आप वो फॉर्मूला लगा दो, उससे आपकी 1 ईयर फॉरवर्ड की वैल्यूएशन निकल जाएगी। उसमें आप इन्वेस्टर आपको बोले कि यार ये तो 1 साल आगे का है, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि अभी मेरा पर मंथ प्रॉफिट, सॉरी पर मंथ रेवेन्यू और पर मंथ एबिटा इतना चल रहा है, तो उसके हिसाब से मैं 1 साल बाद इतना कर ही लूंगा। तो इन्वेस्टर फिर ज्यादा कुछ बोलने लायक रहता नहीं। इट इज अ वेरी फंडामेंटल ड्रिवन वैल्यूएशन। दूसरा तरीका होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। बेसिकली जो बड़ी कंपनीज हैं उनके 5 साल के हम प्रोजेक्शंस बना लेते हैं कि 5 साल इतना रेवेन्यू करेंगी, इतना एबिटा निकालेंगी और इतना वो इंटरेस्ट दे देंगी लोन पे जैसे भी है। लेकिन हमारे 5 साल के कैश फ्लोज क्या होंगे, जो कंपनी के पास कैश आ रहा है उस 5 साल का कैश फ्लो ले लेते हैं। उसके 5 साल के आगे हम ये मानते हैं कि 1% पे ही चलेगी कंपनी, 1% ग्रोथ पे ही चलेगी, उससे हमारे पास एक टर्मिनल वैल्यू आ जाती है। इन दोनों कैश फ्लोज को हम आज की डेट पे उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड करके कि कैपिटल कितनी महंगी है मार्केट में, तो उस हिसाब से हम कर लेते हैं। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो से एक फ्यूचरिस्टिक ड्रिवन वैल्यूएशन आ जाती है हमारे पास कि ज्यादातर मैं आपको एक अंदर की फॉर्मूला बताता हूँ। आपको कोई अच्छा इन्वेस्टर मिल रहा हो, आप अगर वैल्यूएशन पे बात ना बन रही हो, तो 2 तरीके से आप कर सकते हो। एक, आप उसको बोलो कि कन्वर्टेबल ले ले और 1 ईयर फॉरवर्ड की कंपनी की परफॉर्मेंस से लिंक कर दे उसको, या फिर दूसरा आप लिंक कर थोड़ा सकते सा इसको समझाएंगे, ये जो पहला पॉइंट आपने बोला थोड़ा सा आसान शब्दों में जी। मतलब आप ये कहो मैं 1 साल में 10 करोड़ का टर्नओवर करूंगा और 2 करोड़ का एबिटा करूंगा, और तुम मुझे 10 टाइम्स एबिटा का फॉर्मूला लगा दो और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर दे दो, तो वो 1 साल बाद आप जो भी परफॉर्मेंस आपकी आएगी उस पे 10 टाइम्स एबिटा, जो भी आपका एबिटा आएगा उस पर 10 टाइम्स का मल्टीपल लग के उस वैल्यूएशन पे उसकी इक्विटी कन्वर्ट हो जाएगी।
प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी में आ जाएगा। तो बेसिकली अगर 10 करोड़ का रेवेन्यू करने वाला हूँ, 2 करोड़ का EBITDA होगा, तो 2 करोड़ इंटू 10 टाइम्स, मतलब 20 10 करोड़ का। या 15 जो भी फॉर्मूला डिसाइड हुआ है। तो 10-15 के अप्रोक्स करके उसका 20 करोड़ का वैल्यूएशन कर दिया। और बस गाइस, जो लोग लाइक समझना चाहते हैं कि वैल्यूएशन बेसिकली जो होती है वो कैसे वर्क करती है, तो अगर 20 करोड़ का वैल्यूएशन है और आपने किसी से लेट से 2 करोड़ रुपए की फंडिंग उठाई, तो आपको कंपनी का 10% शेयर देना है, एक आसान शब्दों में अगर समझाऊं तो। करेक्ट। दिस इज द प्रोसेस वैल्यूएशन वर्क्स। या ओवर टू। अगर आपको ये लगता है कि आपका नुकसान ना हो जाए तो आप उसको ये भी कह सकते हो, जो भी मेरा अगले राउंड फंडिंग का होगा, जो वैल्यूएशन उस पे लगेगी, उसके 20% डिस्काउंट पे जो करंट इन्वेस्टर है उसकी मैं प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट कर दूंगा। उसको आप आज वो इन्वेस्ट कर रहा है, ज्यादा रिस्क ले रहा है, तो उसको 20% का डिस्काउंट का बेनिफिट दे दो। अगले राउंड में जो भी वैल्यूएशन लगेगी उसका 20% डिस्काउंट पे इसका प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए। ब्यूटीफुल। और तीसरी तरीके डीसीएफ हो गई। तो कई मैंने देखे हैं स्टार्टअप फाउंडर्स, वो ये कहते हैं बॉस हमें तो ये वैल्यूएशन चाहिए, अब आपको अगर जस्टिफाई करनी है तो हम इसको डीसीएफ बेस पे वैल्यूएशन निकाल के आपको जस्टिफाई कर देते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर है वो भी इन चीजों में पूरा नॉलेजेबल होता है, तो मोस्टली आपको कहीं ना कहीं फंडामेंटल बेसिस पे एबिटा या रेवेन्यू के मल्टीपल की सपोर्ट देनी पड़ती है वैल्यूएशन को। प्योर डीसीएफ में कई बार, जैसे मेरे पास एक कंपनी आई थी, अच्छे लोग थे, बहुत अच्छी कंपनी थी, रिलीजियस प्रोडक्ट्स बना रहे थे, लेकिन वो डीसीएफ बेसिस पे 500-600 करोड़ की वैल्यूएशन मांग रहे थे। तो नेचुरली वो इन्वेस्टर को समझ में नहीं आती कि 33 लाख का रेवेन्यू है और 500 करोड़ की वैल्यूएशन है, तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है उसमें। तो गाइज, जो लोग अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं हमें, लेट मी जस्ट क्विकली रिकैप। तुषार जी के साथ बात हो रही है। तुषार जी इन्वेस्टर हैं, सीजन इन्वेस्टर हैं, मल्टीपल करोड़ खुद के भी इन्वेस्ट किए हैं। इनके एंजल ग्रुप्स भी हैं जिसमें मल्टीपल करोड़ अगेन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। आज इनसे डिटेल में बात हो रही है एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाउड किचन का एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं हम लोग, और माइंडसेट समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक कुछ चीजें हैवी भी लग सकती हैं, जस्ट बी विद अस, ओके। और जितना लेमैन लैंग्वेज में हो सकता है उतना तुषार जी पूरे एफर्ट डाल रहे हैं समझाने की। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आखिरी में आप Q&A में पूछ सकते हो, क्वेश्चन आंसर्स हम लेंगे जरूर। सो तुषार जी, बिफोर वी कंटिन्यू, ये डीसीएफ आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? डीसीएफ मतलब देखो सर, रेवेन्यू से क्या फर्क पड़ता है? मतलब एक कंपनी रेवेन्यू कर रही है, एंड ऑफ द डे उसके बाद खर्चे भी हैं, तो सही वो बात। पैसा उसके हाथ में तो नहीं आ रहा ना, हाथ में कैश फ्लो आता है। अगर कंपनी मेरा 10 करोड़ का रेवेन्यू करके 1.5-2 करोड़ का कैश मेरे पास धंधे में आ रहा है, मेरे को कैश से मतलब है। अब मैं 5 साल की प्रोजेक्शन बना लेता हूं कि मेरा 5 साल में कितना कैश आएगा, और उसके बाद मैं ये मान लेता हूं कि चलो फिर कंपनी 1% ग्रोथ पे ही चलेगी, तो उससे एक फिगर भी आ जाती है कैश की। उन दोनों फिगर्स को मैं, आज की वैल्यू उस कैश की क्या हुई, वो मैं निकाल लेता हूं। और वो मैं कैसे निकालता हूं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसिडर करके, कि इंडिया में लोन के ऊपर 12% इंटरेस्ट है, तो वो एक कॉस्ट ऑफ डेट है। और मार्केट में, स्टॉक मार्केट में साल का इतना रिटर्न लार्ज कैप कंपनी देती है स्टॉक में, तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो उसके बेसिस पे मैं उस कैश की आज की वैल्यू निकाल लेता हूं, उसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो बोलते हैं। उसमें कंपनी के ऊपर डेट कितना है वो भी मैटर करता है, बिकॉज उससे कैश फ्लो इंपैक्ट होता है। और आपने फर्दर कितनी इन्वेस्टमेंट्स करी, कैश डाला, वो भी मैटर करता है, क्योंकि वो कैश सिस्टम से बाहर जा रहा है तो वो नेगेटिव होके जा रहा है। तो एक तरह से काफी रियलिस्टिक फिगर आ जाती है। तो बस लेकिन वही है कि प्योरली डीसीएफ इन्वेस्टर इतना मानता नहीं है, क्योंकि उसको क्योंकि कई बार उल्टा सीधा डीसीएफ भी निकल जाता है। जैसे आज आपकी 30 लाख का टर्नओवर है, आपकी प्रोजेक्शन आपने बना ली अगले साल 15 करोड़, उसके आगे 200 करोड़, तो वो रियलिस्टिक नहीं है ना। मतलब उस रेवेन्यू को अचीव करने में आपको खर्चा भी तो करना पड़ेगा, वो भी तो प्रॉपरली डालो। तो इसलिए इन्वेस्टर को समझ में आ जाता है रेशियो से कैलकुलेट करके कि ये डीसीएफ कितना जेन्युइन लग रहा है या नहीं लग रहा। लेकिन अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड एबिटा और रेवेन्यू मल्टीपल पे चल रहे हो तो वो तो रीजनेबल है। मेक सेंस। तो दूसरी तरीका क्या है कि जैसे स्टॉक मार्केट की आपने कंपनी से अपनी को कंपेयर करके मल्टीपल निकाल लिया, उसी तरह से आपकी जैसी कंपनी का मार्केट में कोई
ट्रांजैक्शन हुआ हो, वेंचर कैपिटल हुई हो या प्राइवेट इक्विटी हुई हो, उस कंपनी की डील किस वैल्यूएशन पे हुई थी, उस कंपनी का रेवेन्यू कितना था, एबिटा कितना था, उससे वो मल्टीपल निकल जाता है, ट्रांजैक्शन मल्टीपल। उस ट्रांजैक्शन मल्टीपल को आप अपनी रेवेन्यू और एबिटा के ऊपर लगा लो। तो वो इस टाइप से वैल्यूएशंस होती हैं हमारे इसमें। अमेजिंग। तो आगे चले, बिल्कुल बिल्कुल आगे चलते हैं। तो गाइज ये जो सेगमेंट था जिसमें इतने सारे ऑप्शंस बता रहे थे तुषार जी, ये बेसिकली किस किस तरीके से वैल्यूएशन होती है कि आपकी कंपनी कितने रुपए की है, ये हम कैसे अज्यूम करेंगे, क्योंकि सिर्फ लाइक यूजुअली लोगों को लगता है कि अगर इतना रेवेन्यू होगा या इतना प्रॉफिट होगा तो हमारी कंपनी होगी, इस तरह से नहीं काम करता। तो उसी के कई कॉम्प्लेक्शंस है, कुछ 3 4 ऑलमोस्ट 5 वेज तुषार जी ने अभी शेयर किए हमसे। अगेन नहीं समझ में आया तो फिर से रिकैप करके देखना सेशन विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड कुछ चैट में एक आध मैसेजेस आ रहे हैं, आई वुड लव टू टेक। आगे बढ़ने से पहले सनी तुतेजा लिख रहे हैं कि प्लीज सर मेक अ सेपरेट कोर्स फॉर ऑल दिस, इट विल हेल्प योर क्लाउड किचन स्टूडेंट टू सेट अ हायर एम। Definitely, Sunny ji, I'll see what we can do on this. And couple of people are asking तुषार जी कि जैसे सबसे पहला इन्वेस्टमेंट सबसे टफ होता है ऐसा माना जाता है, राइट? सो एक बार आपका इन्वेस्टमेंट अगर आपको मिलता है तो चांसेस आर कि बाकी दूसरे इन्वेस्टर्स फिर आने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो पहले इन्वेस्टमेंट के लिए इफ यू कैन शो थ्रो सम लाइट ऑन इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं, अगर खासकर क्लाउड किचन में कोई है तो क्या चांसेस बनते हैं जिससे इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर इंटरेस्टेड भी होगा, फॉरगेट कि इन्वेस्टमेंट मिल जाए, इंटरेस्टेड भी बने। सो कैन यू शो थ्रो सम लाइट ऑन दैट, विल बी ग्रेट जी। सो देखो, आप 3 चीजें हैं मोटी मोटी जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट में है जी। एक तो प्रोडक्ट मार्केट फिट, एक फाउंडर मार्केट फिट, और तीसरा नेचुरली मार्केट साइज होना चाहिए उतना जिसमें आप परफॉर्म कर रहे हो। मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट मतलब आपने एक क्लाउड किचन सक्सेसफुली चला के दिखाई हुई है और आपको अपना धंधा समझ में आता है और आपको दूसरा इन्वेस्टर को बता सकते हो, देख इतना पैसा डाल के 5x ग्रोथ दिख रही है मुझे और ये रेंटल्स हैं, ये लोकेशंस हैं, इन पे खोलूंगा, स्ट्रेट ग्रोथ आ रही है, तो वो पैसा डाल देगा। आपके अंदर थोड़ा सा शुरू का जितना अर्ली इन्वेस्टमेंट होगा उतना वो फाउंडर देख के होता है, पैसा फाउंडर के ऊपर लग रहा है। तो आप कितने क्लियर हो, आप कितने इंटेग्रिटी भी दिख रही है कि धंधे में डालोगे मर्सिडीज नहीं खरीद लोगे। तो एक बहुत फेमस फंड गाय, मतलब जो इतना सारी दुनिया जानती है, मैं उसके साथ बैठा था तो वो उसने मेरे को बोला कि यार कई फाउंडर तो मर्सिडीज लेके बैठे हैं। तो अब वो भी इन्वेस्टर को लगता है कि वो भी किसी और का पैसा लेके बैठा है, राइट, उसको वापस करना है। तो वो है। और तीसरा मतलब मार्केट में वो होनी चाहिए, दम होना चाहिए। जैसे अभी आप बोलो आजकल के टाइम में रियल एस्टेट मार्केट में किसी इन्वेस्टर को तो डर लगता है क्योंकि इट्स अ बायर्स मार्केट, इतनी चीजें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बायर्स कम है, राइट? वो है। सो प्रोडक्ट, फाउंडर एंड मार्केट। हाँ, प्रोडक्ट, फाउंडर एंड मार्केट 3 चीजें हैं और आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए आप कितना पैसा लगा के क्या अचीव करना चाह रहे हो। प्रोडक्ट की तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी इस्टेब्लिश करके दिखा दिया है, रेवेन्यू अच्छा है, प्रॉफिट सही जा रहे हैं। फाउंडर पे थोड़ा सा लाइट डालेंगे, क्या क्या देखते हैं एज अ पर्सन? लाइक इंटीग्रिटी आपने मेंशन जरूर किया था, बट लेट्स से समवन अप्रोच यू एज अ फाउंडर, आप क्या देखते हो? और सिंगल फाउंडर भी आप मना कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। नाम ले सकता हूँ, एक स्टार्टअप फाउंडर से मैं मिला था। बिंदास सर। अच्छा, नहीं मैं उसकी तारीफ करूंगा। मैंने उससे मिला और मैंने फर्स्ट डे उसको उठते वक्त बोला, मैंने कहा तेरी इन्वेस्टमेंट जरूर होगी। मतलब वो हर चीज नंबर्स में समझाता है। मतलब आप उससे कोई क्वेश्चन पूछ लो, बॉस ये इलेक्ट्रिक मार्केट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी मार्केट है, वो कहेगा देख भाई इतने का आ रहा है, इतना मेरा खर्चा हो रहा है, ये देखो, ये अपना पेपर पे धंधा निकाल के समझा देता था। और वो 1 घंटे तक यही करता रहा, नंबर्स नंबर्स। और मैंने कहा यार इसकी नहीं होगी तो किसकी होगी। और उसकी फंडिंग हो गई। क्या बात है। तो मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए ना, आपके अंदर क्लैरिटी है और आपको पता है इट इज नॉट अबाउट यू एंड मी, इट इज अबाउट धंधा।
तो आप धंधा दिखा दो करके, कैसे कागज पे आपको समझ में आ रहा है, हम थोड़ा मार्केट से पता करेंगे कि आपने जो फिगर्स दिए ठीक है या नहीं, और आप ऑलरेडी एक सेंटर प्रॉफिटेबली चला रहे हो, और क्या चाहिए, बस हो कितना गया काम। मतलब जो ऑडियंस सुन रही है और कम्युनिटी मेंबर्स है वो तो जानते हैं कितना ब्रिलियंट पॉइंट अभी जो आपने मेंशन किया है वो है। एंड मतलब यहाँ पे भी इस इनिशिएटिव के थ्रू हम लोग यही कोशिश करते हैं कि किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। लाइक आई आई रिकमेंड कि जैसे कई बार लोग शेफ कंसल्टेंसी या इस टाइप में भी जाते हैं, तो आई रिकमेंड दैट आपकी कंट्रोल होना चाहिए आपके बिजनेस पे। आपको समझ में आना चाहिए आपका धंधा क्या है। आप डिसाइड करो कि खाना क्या बनवाना है, उसमें वो हेल्प कर सकते हैं, बट ऐसा मत कर दो कि आप सामने वाले को डाल दो। फिर आगे की जर्नी पूरी ब्लॉक हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि हर जगह आपको वही चाहिए होगा। सो बहुत अमेजिंग बातें आप शेयर कर रहे हो तुषार जी। गाइस, अभी भी लाइक नहीं किया है तो कर देना, और चैट में जो लोग कम्युनिटी मेंबर्स देख रहे हैं प्लीज टाइप अमेजिंग अगर आपको वाकई अमेजिंग लग रहा हो आज का सेशन। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सेशन है, बहुत प्रैक्टिकल लर्निंग पे बात हो रही है। तुषार जी एक सीजन इन्वेस्टर है, और इसीलिए एकदम मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि क्योंकि सर तो बहुत फॉर्मल है, मैंने कहा यहाँ फॉर्मल नहीं है, यहाँ नहीं सब नहीं चिल्ड आउट नहीं, है। डॉक्टर अभिनव, प्लीज फील फ्री टू कॉल मी एनी डे, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच सर। सो यहाँ पे इसलिए तुषार जी बहुत ही फ्रैंक होके, बहुत ही आराम से, बहुत ही एकदम आसान भाषा में सारी चीजें समझा रहे हैं, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, और ग्राउंड रियलिटी पे बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट सही होना चाहिए, फाउंडर में दम होना चाहिए, इंटरनल गेम स्ट्रांग होना चाहिए आपका, और मार्केट फिट होना चाहिए। मतलब जो प्रोडक्ट कर रहे हो ऐसा ना हो कि वो लाइक खरीदने वाले ही 100 लोग हैं तो आप कैसे बेचोगे फिर। तो ओवर टू यू तुषार जी। ये मेरे साथ हुआ था मैट्रिक्स पार्टनर्स के साथ, हम लोग एक फार्मा सैस की डील डिस्कस कर रहे थे। ओके। तो वो सैस वाला इतना अच्छा प्रोडक्ट बना के बैठा था, 250 डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास इंस्टॉल्ड था उसका प्रोडक्ट, जो खुद फाउंडर्स थे उनमें से एक सॉफ्ट बैंक फंडेड कंपनी से आया हुआ था। जी। तो उनके पास एक फेस था इन्वेस्टर को ले जाने के लिए। उसके बाद भी वहीं पे जो वो नंबर्स बोलता रहा, तो जो मैट्रिक्स वाला था उसने पेपर पे लिखा, रिवर्स कैलकुलेट किया कि ये तो मार्केट साइज ही 5-6 हजार करोड़ का है, हम तो 50,000 करोड़ से कम मार्केट साइज में घुसते ही नहीं। तो वो टोटल एड्रेसेबल मार्केट बोलते हैं उसको, टैम निकाल लिया उसने। राइट। तो फूड में तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, तो अनलिमिटेड मार्केट है, मतलब इट्स अ वेरी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। तो इसमें टर्म शीट के अंदर एक ईसॉप्स होती है कि आप अच्छा टैलेंट चाहते हो रिक्रूट करना, लेकिन आप उतनी सैलरी नहीं दे सकते, तो आप उनको सैलरी देने के बजाय ईसॉप दे देते हो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। जिसका मतलब ये है कि थोड़े थोड़े इक्विटी शेयर्स भी सैलरी के साथ एम्प्लॉय को मिलते रहेंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल में वेस्टिंग होती है, मतलब 1 साल एम्प्लॉय काम करेगा तो इतने शेयर्स मिलेंगे, 2 साल करेगा तो इतने मिलेंगे, इस वैल्यूएशन पे मिलेंगे। तो एम्प्लॉय को ये लगता है कि मैं कंपनी का पार्ट हूँ, मेरे इसमें शेयर्स हैं, कल को शेयर्स मैं बेचूंगा तो जितनी सैलरी कम मिली उससे बहुत ज्यादा फायदा। ओयो ने कितने ईसॉप बांटे, और वो एम्प्लॉयज कितना फायदा हुआ। उबर के जो पुराने एम्प्लॉयज हैं, अलीबाबा के जो पुराने हैं, वो ईसॉप की वजह से मिलियनेयर्स बन गए। तो तीसरा ये है कि कुछ कंडीशंस प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट टर्म शीट में होती हैं। कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ट्रू है, फैक्चुअल है, वो आपसे लिखा के साइन कर लेते हैं सीपी की तरह, कंडीशन प्रेसिडेंट की तरह टर्म शीट में। कंडीशन सब्सिक्वेंट मतलब इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप उसको प्रॉपरली उस पैसे को जैसे आपने रिप्रेजेंट किया है वैसे डालोगे बिजनेस के अंदर। इसी तरह से वोटिंग राइट्स, जब मैं शेयर्स खरीदूंगा तो शेयर्स के साथ वोटिंग राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर वोटिंग राइट भी मेरे पास आता है। कई केसेस में इन्वेस्टर सीट भी मांगता है बोर्ड में कि मुझे 4 बोर्ड मेंबर्स में से एक बोर्ड मेंबर मेरा होगा। उसी तरह से रिजर्व मैटर्स होते हैं कि हम लिख देते हैं टर्म शीट के अंदर, ये चीजें अगर कंपनी करेगी तो इन्वेस्टर का राइट अप्रूवल लेना जरूरी है। जैसे कि कोई बड़ा एसेट बेचेगी, पता चला 2-4 बिल्डिंग्स बेच दी कंपनी ने, उसके बाद मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करेगी, अगर कोई कंपनी खरीद रही है या बेच रही है सब्सिडरी, इस टाइप की चीजें वो रिजर्व मैटर्स में। फिर इन्फो राइट्स होती हैं कि मेरे को हर महीने कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की डिटेल आएगी मेरे पास, क्वार्टरली ऑडिटेड रिपोर्ट आएगी, साल की ऑडिटेड रिपोर्ट आएगी, एंड सो ऑन। फाउंडर वेस्टिंग मतलब ये होता है कि मैंने फाउंडर देख के पैसा लगाया है, कल को फाउंडर कहता है मैं छोड़ रहा हूँ कंपनी, अपना स्टेक बेच रहा हूँ,
तो इन्वेस्टर ने पहले से साइन करा रखा होता है टर्म शीट में कि अगर फाउंडर जाएगा तो उसकी इक्विटी बेचने का राइट इन्वेस्टर के पास है। उसको फाउंडर वेस्टिंग बोलते हैं। इसी तरह से लिक्विडेशन प्रेफरेंस, मतलब कि जो शेयर इन्वेस्टर के हैं, अगर फ्यूचर में कोई एग्जिट मिल रही है शेयर्स की, कोई नया इन्वेस्टर आ रहा है, तो इन्वेस्टर के जो शेयर्स हैं उनको ज्यादा राइट होता है कि वो बेचे नेक्स्ट राउंड में, और उसको वैल्यूएशन बेनिफिट भी मिला होता है कई केसेस में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है $500,000 का, कि मेरे इन्वेस्टर के पास $5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, $5 लाख के प्लेन इक्विटी है। तो उसको ये टर्म शीट पे लिखा होता है कि सपोज कि जो प्रेफरेंस शेयर है इन्वेस्टर के वो ज्यादा वैल्यू पे बिकेंगे, वो 2x वैल्यू पे बिकेंगे, और जो प्लेन वनीला है वो कम पे बिकेंगे। इस टाइप की चीजें इन्वेस्टर आपसे प्रपोज कर सकता है। नेचुरली आपके ऊपर है, आप उसको एक्सेप्ट करो नहीं करो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि इस टाइप के क्लॉजेस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रैग अलोंग टैग अलोंग क्लॉज। ड्रैग अलोंग मतलब होता है फाउंडर अगर अपने सॉरी, मैं इन्वेस्टर हूं, मेरे पास 25% इक्विटी है, मेरे को एक 51% इक्विटी का बायर मिल रहा है, तो मैं फाउंडर की 26% इक्विटी खींच के 25 प्लस 26 51% करके बेच सकता हूँ। तो नेचुरली वो वैल्यूएशन पे राइट होता है फाउंडर का कि उस वैल्यू पे वो बेचना चाहता है या नहीं, लेकिन ये राइट मेरे पास टर्म शीट में होता है। उसी तरह से टैग अलोंग होता है, फाउंडर अपने शेयर बेच रहा है तो मेरे पास राइट है कि मैं भी अपने शेयर उसके शेयर्स के साथ बेचूं, टैग अलोंग कर जाऊं उसके, तो इसलिए टैग अलोंग होता है। उसी तरह से राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल होता है। फ्यूचर में कंपनी नए शेयर इशू कर रही है, नया इन्वेस्टर आ रही है, तो मैं कंपनी को कहता हूं मेरे पास राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल है, सबसे पहले ये शेयर आप मुझे ऑफर करो, जो मैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हूं, मैं इसको खरीद लेता हूं फ्यूचर राउंड में। बाकी ऑप्शंस पूल मैंने समझा दिया। ईसॉप्स होते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, 15 से 25% इक्विटी कंपनी की एम्प्लॉयज के लिए रखी होती है, तो लेकिन वो परफॉर्मेंस लिंक्ड होती है। एम्प्लॉय परफॉर्म करे, 1 साल अच्छा परफॉर्म करे, शेयर ले ले, 2 साल अच्छा परफॉर्म करे, शेयर ले ले, तो इस टाइप से वो होती है। अच्छा तुषार जी, यहाँ पे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, इसी स्लाइड से रिलेटेड है। एग्जिट प्लान जो होता है बेसिकली, सो ऑडियंस पहले एग्जिट प्लान बेसिकली कि आप इन्वेस्टर के तौर पे आ रहे हो, तो आपको मैं मेक श्योर कैसे करूंगा कि आप पैसा कमा कर जाओ, तो वो एग्जिट प्लान बताना होता है। तो तुषार जी, एग्जिट प्लान को इन्वेस्टर पॉजिटिवली लेते हैं या नहीं लेते हैं? क्योंकि मैंने दोनों राय सुनी है, आपका जानना चाहता हूँ मैं कि डे वन से ही आप एग्जिट प्लान लेकर दिमाग में चल रहे हो। दैट्स गुड। एग्जिट इंडिया में सबसे बड़ा पेन पॉइंट है इन्वेस्टर का। शेयर्स लेके बैठे रहते हैं, मेरे पास फंड वाले आते हैं, हमारी 12 इंडस्ट्री कंपनीज हैं, कहीं पे तो एग्जिट दिला दो। मतलब वो 2 इन्वेस्टर बैठते हैं आपस में, अपनी अपनी ब्रोशर खोलते हैं, मेरी ये 12 कंपनी, तेरी ये 15 कंपनी, तू मेरी कंपनी में डाल, मैं तेरी कंपनी में डालता हूँ, क्योंकि एग्जिट मिल नहीं रही किसी को भी, क्योंकि आईपीओ मार्केट बहुत मुश्किल है इंडिया की। यहाँ पे महीने में 4 आईपीओ आते हैं, चाइना में हफ्ते में 4 आईपीओ ऐसे आते हैं कि 4 बिलियनियर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आईपीओ मार्केट यहाँ की मुश्किल है। उसके रीजंस हैं, टेक्निकल रीजंस में नहीं जाऊंगा। थोड़ा सा मुश्किल मार्केट है आईपीओ की। जैसे एग्जिट में हम कौन से क्लॉजेस डालते हैं टर्म शीट में? पहला क्लॉज इन्वेस्टर डालता है कि एक आईपीओ आएगा कंपनी का 5 साल के अंदर, और वो मोस्टली केसेस में नहीं आता, क्योंकि सेबी के रूल्स हैं कि 3 साल तक कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए तभी आईपीओ आएगा। अब स्टार्टअप्स तो कैश बर्न कर रही होती हैं, तो 3 साल तक प्रॉफिट नहीं होता उनका। दूसरी तरफ सेबी का रूल है कि 50% आप शेयर्स इंस्टीट्यूशन को बेच सकते हो, लेकिन 50% रिटेल यानी 1-1 लाख की लिमिट वाले लोगों को बेचने हैं, और वो 50% का इशू सब्सक्राइब करने में मुश्किल आ जाती है। इमार एमजीएफ का रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब नहीं हुआ था, उसका आईपीओ आया ही नहीं, डिवॉल्व कर गया, उसके बाद बेचारा आज तक नहीं ला पाया आईपीओ, इतना बदनाम हो गया। तो आईपीओ थोड़ा डिफिकल्ट है। सेकंड क्लॉज हम ये डालते हैं कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन वैल्यूअर अपॉइंट होएगा, और थर्ड पार्टी इन्वेस्टर को एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के शेयर बेच दिए जाएंगे, और उसको जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर है 20-25% का, वो उसको मिल जाएगा। अगर वो पॉसिबल नहीं होता तो थर्ड क्लॉज डला होता है टर्म शीट में कि कंपनी बायबैक कर लेगी इन्वेस्टर के शेयर्स। अब आपको सुन के हैरानी होगी, रिलायंस अपने खुद के शेयर खरीदता है मार्केट से, और अपनी ट्रेजरी में उनको बोलता है ट्रेजरी शेयर्स,
अपने ही शेयर्स में ट्रेडिंग अलाउड होती है, उनको ट्रेजरी शेयर्स बोलते हैं, तो कंपनी खरीद लेगी। चौथी ऑप्शन होती है कंपनी नहीं खरीद रही तो जो फाउंडर है वो खरीद लेगा। बहुत केसेस में फाउंडर नहीं खरीदता, कोई किसी को इक्विटी दूसरे की खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, बिकॉज इक्विटी की जो इनहेरेंट नेचर है वो है रिस्क कैपिटल, यानी सामने वाला रिस्क लेके घुसा है, तो आप उसको बाय लॉ फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन टर्म शीट्स में लिखा होता है कि फाउंडर इतना आईआरआर, और मैंने कुछ केसेस देखे हैं कंपनी के कि फाउंडर ने प्रॉपर आईआरआर देके इन्वेस्टर को एग्जिट दिया। तो और पांचवी ऑप्शन वही है कि फ्यूचर राउंड्स में डाइल्यूशन करते चलो। ब्रांड कैपिटल जो है टाइम्स ऑफ इंडिया का 830 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स हैं, 420 या 425 कंपनीज में एग्जिट लिया हुआ है। अब आप सोचोगे 50% कंपनीज की एग्जिट मतलब क्या परफॉर्मेंस है, लेकिन वो फ्यूचर राउंड में एग्जिट कर देते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी है कि इंडिया में प्रॉपर एग्जिट मुश्किल है, अगले राउंड में बेचते चलो। तो वो उस टाइप से रहता है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक्सेलेरेटर भी ये अक्सर करता है। हाँ, उनका वो शेयर्स मैनेजमेंट वही है कि अपनी अपनी शेयर एग्जिट करते चलो। तो ये है। तो हाँ बिल्कुल। तो गाइज जस्ट टू रिव्यू व्हाट वी हैव स्पोकन टिल नाउ। सो आज हमारे साथ बाय द वे तुषार जी हैं। आज इन्वेस्टर हैं, ये खुद सीजन्ड, करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं इनके एंजल फंड से, और आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखो आप क्या क्या चीजें इससे सीख सकते हो, एक बार में नहीं समझ में आया फिर से देखना। एंड जी तुषार जी, ओवर टू यू। हाँ, बस ये लास्ट स्लाइड थी, मैंने तो फटाफट सब कुछ आई होप बहुत स्पीड से नहीं एक्सप्लेन कर दिया, बट अभी किसी को भी कोई क्वेश्चंस है, आई एम हैप्पी टू टेक देम। परफेक्ट परफेक्ट। सो यू कैन स्टॉप द स्लाइड शेयरिंग नाउ। हाँ श्योर, मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड। So guys, I'll take all the questions, इन्वेस्टर्स से रिलेटेड, इन्वेस्टर्स के माइंडसेट से रिलेटेड। आप देखो ज्ञान में मत जाना यहाँ प्रैक्टिकल बातें हो रही हैं, तो आप तो ये सोचो कि आज आप फायदा कैसे ले सकते हो आगे बढ़ने के लिए, और उससे रिलेटेड जो आपको दिक्कतें आ रही हैं वो सवाल पूछो। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करेंगे। ठीक है, ओके कामाक्षी जी, इट्स कम्प्लीटली फाइन। कुछ लोग के लिए थोड़ा हैवी हो सकता है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। हो सकता है आज आपको जरूरत भी ना हो इन्वेस्टमेंट की। बाय द वे पहला क्वेश्चन तो यही मैं लेना चाहूंगा। इनफैक्ट पवन जी ने पूछा है ये सवाल कि किस स्टेज पे हम पहुंचे तब हम फंडिंग के लिए जाएं एटलीस्ट। जी तो शायद ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जिसने भी पूछा है उनको बहुत समझ है इस चीज की कि जितना जल्दी आप डाइल्यूट करते हो उतना कई बार इतना डाइल्यूट करने की स्टेट में आ जाते हो कि आपका खुद का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो आप बहुत जल्दी डाइल्यूट करोगे तो आप ही का नुकसान है। लेकिन इसमें भी देखो आजकल हर कोई एंजल इन्वेस्टर है, आजकल बिल्डर भी एंजल इन्वेस्टर है, सीएक्सओ भी एंजल इन्वेस्टर है, आजकल हाउसवाइफ भी एंजल इन्वेस्टर है। तो अगर कोई इन्वेस्टर आपके साथ अलाइंड है, उसको आपका विजन और उसका विजन मैच करता है, तो आपको अच्छी वैल्यूएशन पे कई बार मिल जाती है शुरू में इक्विटी इन्वेस्टमेंट। जैसे मैं आपको बताऊं, एक कंपनी दिल्ली, साउथ दिल्ली की कंपनी है, उन्होंने weddings.in से कॉपी किया था अपना बिजनेस मॉडल। 7% इक्विटी डाइल्यूट करके 1.2 करोड़ उठा लिए थे आइडिया स्टेज में। तो ऐसे यूजुअली होता नहीं है, इतनी अच्छी डील मिलती नहीं है शुरू में। आप थोड़ा सा प्रोडक्ट मार्केट फिट पीएमएफ करके, उसके बाद एमवीपी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना के, उसके बाद आप ट्रैक्शन करके दिखाओ। जहां पे भी आपका 50 लाख 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, तो आपको इन्वेस्टर विजिबिलिटी और बेटर डील आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ब्रिलियंट। सो गाइस आपने समझ लिया। सो बेसिकली सबसे पहले तो ये समझ लो कि आइडिया लेवल पे बात नहीं करनी है, पहले लॉन्च करना है, सीखना है, लॉन्च करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा सिस्टम ड्रिवन लॉन्च करिए, उसको प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद जब यू हैव नंबर्स कमिंग इन तभी आप किसी को दिखा पाओगे ना। नंबर्स ही नहीं होंगे तो बात कैसे होगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक चीज डॉक्टर अभिनव, सिमिलर टाइप की, जैसे ये कंपनी साउथ दिल्ली की मैंने आपको बताई, 7% इक्विटी देके 1.2 लेके बैठी थी, बहुत स्वीट डील मिली हुई थी उसको।
हाँ जी, हाँ जी। इसी टाइप की एक कंपनी बैंगलोर से आई थी, बिल्कुल सेम बिजनेस मॉडल, सेम एवरीथिंग। उन्होंने 36 lakhs देके लेके 36% इक्विटी दी हुई थी। ओहो। तो मतलब बहुत अर्ली स्टेज में कुछ भरोसा नहीं, मतलब कैसे आप थोड़ा सा आप एस्टैब्लिश करके चलो, ज्यादा बेटर। तो ये कंपनी सक्सीड कर पाई वैसे, तुषार जी पूछ चल रहे हैं? रही है, चला रही है, बिकॉज देखो ऐसा है, ब्लू ओशन मार्केट है इंडिया। अगर हम्म। आप weddings.in टाइप का धंधा कर रहे हो, देखो बैंक्वेट हॉल्स, इतनी सिटीज हैं, इतने बैंक्वेट हॉल्स हैं, फ्लावर बिजनेस है वेडिंग मार्केट के अंदर, एग्रीगेट करने को इतना कुछ है कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। हम्म। लेकिन आप टॉप 3 में एंड में बचोगे या नहीं बचोगे, वो आप एक्सपैंड करने के लिए आपको कैश भी चाहिए, कैसे आप इन्वेस्टर मैनेज करते हो, और उसके ऊपर टीम कैसे अपनी मैनेज करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता परफेक्ट। सो अगेन इसी से रिलेटेड उज्जवल जी का भी क्वेश्चन था, ही वाज आस्किंग कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्या रेस फंड करने के लिए, तो यू गॉट योर आंसर। लाइक नंबर्स की अगर बात करें तो ये एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितने नंबर्स तक हम पहुंचे, लाइक रेवेन्यू की बात कर लेते हैं फ्लैट, और यहाँ फूड बिजनेस की बात चल रही है। मार्जिन्स, प्रॉफिट मार्जिन्स की अगर बात करें तो 10 से 20% एट मैक्स है। तो अगर नंबर्स की बात करें तो कितने रेवेन्यू के बाद फिर हमें फंडिंग के बारे में सोचना चाहिए या अप्रोच करना शुरू करना चाहिए? है। मिनिमम 50 लाख आप करो तो आपको आपका बेनिफिट है। ओके, परफेक्ट। सो गाइज यू नो द नंबर्स नाउ, और अब इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन मैं अगला पूछना चाहूंगा तुषार जी, कि 50 लाख का रेवेन्यू हो गया, 1 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, अब कैसे मैं अप्रोच कर सकता हूँ इन्वेस्टर्स को? आपको तो मैं डिटेल्स डाल दूंगा अप्रोच करने की, तो गाइज जो भी लोग लाइव देख रहे हैं प्लीज नीचे चेकआउट कर सकते हो, डिटेल्स होंगी। नहीं तो आप डायरेक्टली जाके लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हो तुषार कंसल जी को। अदर देन दैट, तुषार जी व्हाट वुड यू सजेस्ट, कैसे अप्रोच किया जा सकता है इन्वेस्टर्स को? आप एक सिंपल सा 12 स्लाइड का, 10 स्लाइड का, मैक्सिमम 14 स्लाइड का आप एक पिच डेक बनाओ, जिसके अंदर आप शुरू में अपनी इंफॉर्मेशन डालो, कि कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। सेकंड, उसका सोल्यूशन कौन सा है आपके पास। तीसरा, अभी तक क्या अचीव किया है आपने, टाइमलाइन डालो। आपके कंपेटिटर कौन है, एक उस पे डालो। आपके कंपेरेबल कंपनीज जिन्होंने सक्सेस हासिल करी है, उसके ऊपर कुछ डालो। और लास्ट में फाइनेंशियल का थोड़ा स्नैपशॉट डालो कि हम अगले 3 या 5 साल में ये धंधा करने वाले हैं, इसके लिए हमें ये पैसा चाहिए। और वैल्यूएशन पे आप मत डालो पिच डेक के अंदर, उसको छोड़ दो। जब आपके पास 3-4 टर्म शीट आएंगी तब आप डिसाइड करना कौन सी लेनी है। और इन्वेस्टर को आप दो तरीके से मिल सकते हो, या तो आईबीज के थ्रू, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के थ्रू मिल सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली मिल सकते हो। अगर आपको लगता है डायरेक्टली 50-100 इन्वेस्टर से टाइम लगता है, तो आप आईबीज की हेल्प ले लो। अगर आप बहुत आइडिया स्टेज पे काम कर रहे हो, तो आप इंक्यूबेटर या एक्सेलरेटर के पास जाओ। उसमें आप थोड़ी इक्विटी डाइल्यूशन होती है, 3 से 8% डाइल्यूशन होती है। मोस्टली 4 या 5% में इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर मिल जाता है आपको। उसमें क्या होता है कि आपको कंपेरेबल कंपनी से सीखने को जल्दी मिल जाएगा कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, इसी टाइप की ये कंपनी ऐसे चल रही है। उसकी नॉलेज आपको पूरी मिलती जाती है, फिर बिजनेस कॉन्टैक्ट्स मिलते जाते हैं, और फंडिंग हेल्प भी मिली जाती है। Perfect. Beautiful answer. So, guys, you got the answer, and this is how you can do this. अगला क्वेश्चन सुजय का है। सुजय का आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। की पॉइंट्स पूछ रहे हैं, फंडिंग देने से पहले स्टार्टअप्स में क्या देखते हैं। सो प्रोडक्ट, फाउंडर, मार्केट फिट, 3 चीजें हैं जिसका ध्यान रखिए आप। वेंकट पूछ रहे हैं, गुड वैल्यूएशन के लिए इबिटा कितना परसेंटेज होना चाहिए रेवेन्यू का? सो चाहिए तो मतलब जितना हो अच्छा है, बट मतलब आप कम से कम आज की मार्केट में मैं बोलूंगा 25% बहुत अच्छा एबिटा है, 20% बहुत अच्छा एबिटा है। और अगर आपका डेट फ्री काइंड ऑफ बिजनेस है, क्योंकि एबिटा के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन आती है, अगर डेट फ्री बिजनेस है और 20% एबिटा कर रहे हो तो बल्ले बल्ले है। सो वेंकट जी, ये तो वही बात हो गई, प्रॉफिट कितना होना चाहिए कंपनी का, जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो ठीक है, लेकिन अगेन आपके नंबर्स क्या बोलते हैं, आपका बिजनेस प्लान तैयार है कि नहीं? एंड अगेन गाइस, इट ऑल नैरोज डाउन टू द सेम थिंग। जैसे तुषार जी ने शेयर किया कि आपकी बैलेंस शीट, आपका
फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्लियर होना चाहिए, हम बजटिंग में जो बात करते हैं, इट्स ऑल दैट ओनली। और प्रेजेंटेशन की, पिच डेक मतलब प्रेजेंटेशन है जिसकी तुषार जी ने अभी बात की। सो आपकी प्रेजेंटेशन कम टेक्स्ट और कम स्लाइड्स की हो, ताकि वीडियो attention- पिच डेक्स भी चलते हैं आजकल, अच्छा। 3 से 5 मिनट का। थोड़ा अगर आपका थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है तो थोड़ा एनिमेशन डाल के, ज्यादा महंगा नहीं होता, बट इन्वेस्टर को एकदम से मीटिंग टाइम आपको मिल जाता है। मीटिंग मतलब कॉलिंग मीटिंग टाइम जो भी। नाइस नाइस नाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोकेश जी, एज अ फाउंडर कितना हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें डाइल्यूट करना चाहिए एज टू इन्वेस्टर्स, लाइक देखो, फर्स्ट राउंड के लिए अगर बात करें। फर्स्ट राउंड में अगर आप किसी को एज अ पार्टनर लेके चल रहे हो तो नेचुरली फिर अलग बात हो जाती है। 40% पार्टनर, 50% पार्टनर, 51% पार्टनर, जिसमें आप स्ट्रेटेजिक स्टेक दे देते हो दूसरे वाले को। लेकिन अगर आप धीरे धीरे करके डाइल्यूट करके एक धंधा बिल्ड करके चल रहे हो, वैल्यूएशन गेम बना के चल रहे हो कि फ्यूचर में और अच्छे इन्वेस्टर आएंगे, तो आप 25% से ज्यादा डाइल्यूट मत करो। मोस्टली मोस्टली 15, 18 या 22% का डाइल्यूशन होता है। और अगर आपका ऑलरेडी पका पकाया बिजनेस है तो नेचुरली फिर तो 15 से कम भी डाइल्यूट करने में चल जाता है। लेकिन इन्वेस्टर 22-25, मैं 25% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 26% डाइल्यूशन पे इन्वेस्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में स्पेशल रेजोल्यूशन ब्लॉक करने का राइट मिल जाता है कंपनी लॉ से। अगर आप कंट्रोल ओरिएंटेड हो, और इंडिया में सारे ही कंट्रोल ओरिएंटेड है, तो मतलब हम लोगों को ना इक्विटी का बहुत वो है। तो जैसे फॉरेन में ये बिलियनियर्स जो बने बैठे हैं, इनकी आप देखो शेयर होल्डिंग कंपनी में तो 30%, 25%, 35%। यहाँ पे थोड़ा सा बंदा डरता है थोड़ा, जो भी है। तो आप 25% तक डाइल्यूट करके चलो, 22 या 18 कर लो। आई होप आप लोग को आपके आंसर्स मिल रहे हैं क्वेश्चन के। तो गाइज अपने जो भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स में जरूर लिखिए, मैं एक एक करके ले रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। आई एम जस्ट टेकिंग ऑल द क्वेश्चन। यहाँ पे रितेश हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा 1.25 करोड़ का ऑलरेडी टर्नओवर है, इन्वेस्टर के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए। अब पूछ रहे हैं हाउ टू गो अबाउट इट, शुड वी गो अबाउट इट, पहले तो क्या इनको जाना चाहिए, और जा सकते हैं तो कैसे जा सकते हैं। मे बी रितेश जी शायद किसी और बिजनेस मॉडल में है, मे बी, और वो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मे बी क्लाउड किचन और समथिंग। रितेश जी ने क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ पे तो। कुछ कुछ सेक्टर्स ना इन्वेस्टर को टच ही नहीं करता, जैसे ट्रेडिंग नहीं टच करेगा। सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री में इन्वेस्टर को मुश्किल आती है। जैसे प्योर प्ले आईटी इंडस्ट्री हो गई, सॉफ्टवेयर की कोई कंपनी हो गई, जैसे केटरिंग भी गया, राइट। हाँ मतलब वो ट्रेडिंग टाइप से ही जो बिजनेस है ना उसको, क्योंकि उसमें फॉल्स टर्नओवर होता है। भाई ट्रेडिंग में क्या टर्नओवर है, आपने 4% के मार्जिन पे यहां से लेके वहां बेचा, तो वो टर्नओवर का कोई मतलब नहीं है। और वो कोई हार्ड एसेट नहीं क्रिएट हो रहे, कोई कैपेसिटी नहीं क्रिएट हो रही। जी, तो रितेश जी वो ने है। अपडेट किया है कि ही इज इनटू कॉर्पोरेट केटरिंग, केटरिंग सर्विस कंपनी। अभी एक कंपनी फंड हुई है यहाँ पे, प्रमोटर लिव्स इन गेस्ट, ये फार्म हाउस दिल्ली एयरपोर्ट के पास में। उनके पास 75 करोड़ का टर्नओवर है कॉर्पोरेट केटरिंग का। अभी उनको फंडिंग मिली है अराउंड $3-4 मिलियन। तो अच्छा, प्रमोटर स्ट्रांग है, अच्छा बैकग्राउंड है और अच्छी फंडिंग लेके बैठा है। बहुत प्रॉब्लम आई है उसको फंडिंग में क्योंकि कोविड की वजह से। नहीं तो पहले ही ले लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है, मतलब कॉर्पोरेट केटरिंग में भी आप कितने कैप्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके पास लॉन्ग टर्म, वो जितने कैप्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टाइप की चीज अगर होती है किसी भी चीज में, तो कैश फ्लो विजिबिलिटी बढ़ जाती है इन्वेस्टर के लिए। तो वो डीसीएफ का जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो का जो कैश दिख रहा होता है उस पर उसका भरोसा बढ़ जाता है कि ये पैसे तो आएंगे ही आएंगे। एक तुषार जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इस आंसर के लिए। एक और चीज मैंने जो नोशन देखा है, दैट इज इन्वेस्टर को लेकर या तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है कि कैसे भी इन्वेस्टर आ जाए, फिर दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो बहुत डरते हैं कि इन्वेस्टर नहीं बिल्कुल चाहिए। सही, डरते हैं क्योंकि बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट की जगह वल्चर कैपिटलिस्ट घूम रहे हैं। मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल देता हूँ। मेरा 1 साल सीनियर था इंजीनियरिंग में, बेनेटन और रीबॉक का एमडी था एक डिवीजन का। उसने 2012 में कंपनी लगाई
और उसमें कंपनी के $20 मिलियन मिले हुए थे एस्ट्रो ग्रुप मलेशिया से। तो $20 मिलियन आप मतलब एक साथ नहीं मिले थे, पहले उन्होंने 5 डाले, 8 डाले, और करते कराते 89% इक्विटी उनके पास चली गई थी, क्योंकि और कोई इन्वेस्टर डाल नहीं रहा था उसमें पैसे। लेकिन वो कैश बर्न बिजनेस था, मतलब पूरे 20 मिलियन में से 12 मिलियन तो गूगल और फेसबुक को चले गए ऑनलाइन मार्केटिंग में। उसमें क्या था, जो बोर्ड पे फंड वाले ने लोग बिठाए थे वो ठीक नहीं थे। वो कहते ग्रोथ दिखा, वो समझाता था कि भाई कैश बर्न इतना है, लेकिन उनके पास कंट्रोल था बोर्ड पे। तो वहां पे वो जो बैड टेस्ट हुआ है वो मेरे सामने सामने की बात है। तो इसलिए मतलब नेचुरली जो क्वेश्चन है इनका वो बिल्कुल ठीक है। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्वेस्टर का पता कर लो। मतलब मैं डरा नहीं रहा हूँ, बिकॉज मतलब मनी हैज नो कलर, एंड ऑफ द डे वो 20 मिलियन से, मेरा जो जान पहचान वाला है उसने 1-1 करोड़ की सैलरी ली है इतने सालों तक। तो मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है, बट एंड ऑफ द डे वो इट लेफ्ट अ बैड टेस्ट ऑन हिज माउथ कि वो जो ग्रोथ को ओवर चेस कर रहे थे। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ये कंपनी है जो इन्वर्टर्स बेचती है, इंडिया की टॉप 3 कंपनीज में आती है। उस प्रमोटर ने एक कन्वर्टेबल साइन कर रखा था प्रेफरेंस शेयर का, कि वैल्यूएशन फ्यूचर में डिसाइड होगी। और 1 साल क्या हुआ, बारिशें बहुत अच्छी आई तो इन्वर्टर कम बिके, उसका डिल्यूशन इतना ज्यादा हो गया अगले राउंड में, वो बेचारा बहुत रोया। तो कई बार ये चीजें हो जाती है। सही है, नाइस। सो आई एम लविंग दिस कन्वर्सेशन तुषार जी। एक आध और क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद विल रैप अप। सो बेसिकली ये क्वेश्चन विराज का था, यूट्यूब से पूछ रहे थे, फ्रीडम के बारे में कंसर्न थे। तो गाइज विराज, अगेन ये सब्जेक्टिव होता है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है कि वो कितनी फ्रीडम देगा। तो जस्ट आप अपना क्रॉस चेक। आप अपना बोर्ड पे कंट्रोल बना के रखो, आप उसको 4 में से 1 सीट दो इन्वेस्टर को, और आप डुअल वोटिंग राइट्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, डीवीआर शेयर्स भी यूज कर सकते हो। मतलब कि आपके शेयर वैसे तो 40% है, लेकिन उसके बोर्ड में डबल राइट्स है, वो इंडिया में अलाउड है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। जैसे टाटास का अपनी सब कंपनीज में लेस देन 50% इक्विटी है, लेकिन उसने डीवीआर इशू कर रखे हैं, उससे कंट्रोल करता है। मार्क जकरबर्ग ने कंट्रोल रखा हुआ है बोर्ड पे डीवीआर यूज करके। तो आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर्स फ्यूचर में आप अपने नाम पे करा लो फ्यूचर राउंड्स में। इज इट सिमिलर टू वीटो पावर? वीटो, हाँ, मतलब बोर्ड के ऊपर कितना राइट है वो वोटिंग राइट से गवर्न होता है। उसी में कई वेस्टर्न कंट्रीज और इंडिया दोनों डुअल वोटिंग, डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स अलाउ करती है। तो जो शेयर प्रमोटर के पास है उसको आप डीवीआर शेयर्स अपने अपने नाम पे कर लो। आपके शेयर्स डीवीआर होंगे तो आपका कंट्रोल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द इन्वेस्टर। अमेजिंग, परफेक्ट। गाइस, अगर कोई और क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। आई थिंक आई हैव टेकन मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने ले लिए हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर और सीखना चाहते हैं, क्लाउड किचन के बारे में जानना चाहते हैं। तो गाइज मैं लिंक नीचे शेयर कर दे रहा हूँ, ये लिंक पे आप जा सकते हो। मेरा अभी रिसेंट में एक सेशन हुआ था जो क्लाउड किचन की अंडरस्टैंडिंग के लिए था। कई लोग बेसिक सवाल पूछ रहे हैं, लाइक कुकिंग नहीं आती तो कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल है कम्युनिटी में जिन्होंने कुकिंग नहीं आती फिर भी लॉन्च किया है, फूड बिजनेस का कोई बैकग्राउंड नहीं है तो भी लॉन्च किया है। इस पे जाइए, एक सेशन मिलेगा, देखिए, अटेंड कीजिए, और ऑप्शन भी रहेगा इफ यू वांट टू ज्वाइन द कम्युनिटी और द कोर्स एज वेल। एक क्वेश्चन और आया, अर्ली स्टेज में स्टार्टअप का वैल्यूएशन के बारे में पूछ रहे हैं। एकदम अर्ली स्टेज जब होता है, जब फर्स्ट राउंड होता है तुषार जी, सो लाइक एक बेसिक मॉडल, लाइक एक अगर आपकी तरफ से रिकमेंडेड हो कि ये मॉडल पे आप जा सकते हो टू बिगिन विद, क्या वैल्यूएशन का करना चाहिए? देखो, अभी एक कंपनी की टर्म शीट मैंने इशू करवाई थी, तो उसमें प्रमोटर ने पैसा भी थोड़ा शुरू में डाला हुआ था, टर्नओवर तो नहीं था, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो प्लेटफॉर्म था वो पूरा दिख रहा था कि पूरा रेडी था। और वो प्रमोटर ने भी थोड़ा सा पैसा शुरू में टीम वीम में अच्छा डाला हुआ था। तो उनकी वैल्यूएशन आराम से 15-18-20 करोड़ पे स्टार्ट हुई। तो आप 15-18-20 करोड़ पे अपनी कंपनी की वैल्यूएशन, अगर आपका प्रोडक्ट रेडी है, आप कुछ पैसे लगा चुके हो, 50 लाख 1 करोड़ कुछ लगा चुके हो, प्रोडक्ट रेडी है, तो आप इतनी वैल्यूएशन तो मांग सकते हो कि भाई मेरे को 18% डाइल्यूट करके मेरे को 3.5 करोड़ दे दे, या 20% डाइल्यूट करके 4 करोड़ दे दे, या इस टाइप से आप कर सकते हो।
मतलब ये डिसेंट वैल्यूएशन रेंजेस मानी जाती हैं। बहुत अर्ली स्टेज नहीं कह रहा मैं, आइडिया स्टेज और वो, मतलब कुछ होना चाहिए। तो उसमें 15, 18, 20 करोड़, 22 करोड़ वैल्यूएशन चल जाती है, 15, 16 इस टाइप से। ये बाय द वे तुषार जी फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं एज एन एंजल राउंड, आई थिंक, राइट? बट अगर आप सीड फंडिंग के लिए जा रहे हो तो सीड फंडिंग फिर वही 15-20 वो लाख तो, रुपीस के हाँ वो तो फिर अलग कहानी होती है, वो है ना, तो वो लाखों में चलती है, फिर वो करोड़ों में नहीं चलती। तो मल्टीपल लेवल्स होते हैं गाइस। सीड फंडिंग होती है, फिर एंजल फंडिंग होती है, फिर वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग होती है। तुषार जी वेंचर कैपिटलिस्ट भी हैं, तो इसलिए हम उस लेवल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल और लोग पूछ रहे हैं कि क्या क्लाउड किचन को फंडिंग मिलती है? तुषार जी जस्ट अगर हो कुछ याद आपको इंसिडेंट, या आपके पास बहुत सारे मार्केट के एग्जांपल्स हैं, मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, ऐसा कोई एग्जांपल आप देना चाहें जो कि क्लाउड किचन को हुई हो? बाय द वे अभी एक हमने अभी तो लाइन लगी हुई है, अभी ये कोविड के बाद तो लाइन लगी हुई है और सब लोग घर पे ऑर्डर कर रहे हैं। अमेजोन का बिजनेस देख लो आप, बिग बास्केट का देख लो, हर कोई, हर किसी को घर में चाहिए। और खाने की तो बहुत फैमिलीज को, डुअल इनकम, नो किड्स, डिंक फैमिलीज हैं, तो उस टाइप की, तो मतलब क्लाउड किचन में तो धंधा चल रहा है। आप एक दो दो या तीन क्लाउड किचन लगा के प्रूफ ऑफ कंसेप्ट करके आप चला के दिखाओ, अपना फंडिंग मिलेगी। बाय द वे 2 या 3 क्लाउड किचन से मतलब है मल्टी ब्रांड क्रिएट करके एक साथ हाँ, चला के दिखाओ। तो राइट। सो तुषार जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी No, it's my pleasure, Dr. Abhinav. Your aura is very good, and you really want to help people out there. It comes through. So that rub off on me. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। और आई होप गाइस जो लोग आज देख रहे थे, आपको सच में कुछ सीखने को मिला हो। आई एम श्योर 100% नहीं भी समझ में आया, मैं कह रहा हूँ 10% आया क्या, आप उस पर फोकस करो, यू कैन रिवाइज दिस। और ये चीजें हो सकता है आज आपके रिलेवेंस ना भी हो, कि अभी तो मेरे स्टेट यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं। फ्यूचर रेडी होना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि किधर जाना है, और उसकी तैयारी आप डे वन से आज मेहनत करने पे। और मैं चाहता हूँ इस सेशन से आप मोटिवेशन लेकर जाओ कि बॉस फ्यूचर ब्राइट है, लाइन लगी हुई है, सर ने कहा अभी ओके। तो हमें भी अच्छा क्लाउड किचन सेटअप करना है, उसको मल्टीपल लैक्स और फिर मल्टीपल करोड़ के रेवेन्यू पे ले जाना है। और अगेन अगर आप फनल फॉलो कर रहे हो कि सिर्फ डायरेक्ट ऑर्डर्स पे डिपेंडेंट नहीं हो, उसके बाद बल्क ऑर्डर्स पे आ रहे हो, फिर फ्रेंचाइज भी सेल कर रहे हो, तो चांसेस ज्यादा आपके प्रॉफिटेबिलिटी की। और फिर इन्वेस्टर्स अब प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गए, पुराना जमाना गया कि आप नुकसान करते रहो तो भी चलेगा। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला आज तुषार जी। आई एम श्योर बाकी सब लोगों ने भी लव किया होगा इस सेशन नहीं, को। आप बिल्कुल ठीक। मैंने आपको जो मोबिलिटी वाला एग्जांपल दिया था, जिसको मैंने कहा था फंडिंग तेरी जरूर होगी, उसके पास पैसा नहीं था बेचारा, ऊटी या कहीं से आया था, सोचो जी। लेकिन उसने दिल्ली में आके एक परफॉर्म करके आउटलेट खोल के, और उसने ना ये फ्रेंचाइज से पैसा उठा रखा था, 50-50 लाख करके 5 फ्रेंचाइजी से पैसा उठा रखा था, उसके ऊपर इंटरेस्ट देता था। लेकिन उसको पैसा इसलिए मिला बिकॉज उसकी इंटेग्रिटी फैक्टर था उसका, क्या बात है, और क्लैरिटी ऑफ थॉट थी। अमेजिंग अमेजिंग, लव्ड इट। सो थैंक यू तुषार जी, मैं आपको थैंक यू। बाद में भी परेशान करूंगा एनी टाइम, मोस्ट फील फ्री। आज यहाँ आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, इतनी सारी चीजों को इतना सिंपल वे में प्रेजेंट करने के लिए, और कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए, थैंक यू सो